and I'm currently pursuing BS Accounting and Finance from IBA Karachi. So I welcome you all to the first day of our NTHP workshop. You all know that if you're preparing for NTHP, you first have to clear the NTHP test and then you have to reappear for the IBA test. So this basically particular stage is really integral for you if you're aiming for a university at IBA. ठीक है, तो आज की वर्कशॉप में I'll try my best to cover the topics that we have included in the agenda for today. ठीक है, if you have any questions, we can take your questions at the end of the session. ठीक है, throughout the session, you can wait for your questions. ठीक है, end में questions पूछ लेना ताकि session interrupt ना हो और everyone can take advantage from your questions. ठीक है, so let's begin. I have included the pattern of the test as well in the slides, so anyone who is alien to the concept of NTHP can benefit from this. Okay, so basically it's similar to the IBA round one test, but the difficulty level is slightly lesser than as compared to the IBA round one test. Okay, NTHP का थोड़ा सा level difficulty level slightly less होता है. Okay, these are some useful resources that you can use throughout your journey. We have a course pack, Numibaka, which you can refer to. We have India Bix की website, Maskuru, and of course IBA की official website पे भी you can find a lot of sample papers, the syllabus, ठीक है, past papers download कर सकते हो, वहाँ से you can practice, and these websites, and of course if you want to purchase the course pack you can do that as well. ठीक है, so ये सारी resources will help you throughout your journey for the NTHP prep as well as for the round one prep for IBA eventually, inshallah. Now for our agenda for today are these topics. Obviously, because of the shortage of time, we are not going to go way much depth into these topics, but I'll try my best कि मैं आप लोगों को tips and tricks और सारे formulas, practice questions साथ साथ कराती भी जाऊँ. ठीक है, so इंशाल्लाह ताला by the end of this session ये सारे topics हमें clear होने चाहिए, and with further practice जो कि आप लोग इन resources से कर सकते हो या website पे जाके कर सकते हो, तो इंशाल्लाह ताला इन topics की तैयारी आप लोगों की after this workshop that will be perfectly clear for you. So without any further ado, let's hop on towards our first topic. So maths का सबसे basic topic जो हमारे पास आता है वो numbers का आता है. So I would want कि ये वाला topic हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से clear हो जाए. ठीक है, अच्छा अब numbers में हम ये देखते हैं कि numbers जो है maths में there are two types of numbers. So एक तो हमारे पास numbers आ जाते हैं भाई real numbers. ठीक है, the first category of numbers that we have called real. And the second category of numbers जो कि maths में classify होते हैं broadly, they are called imaginary or unreal numbers. ठीक है, यहाँ पे पहले मैं categories बना रही हूँ, then I have detailed explanations included in the slides as well जो कि आप लोग later on देख सकते हो. But just a web of numbers. सबसे पहले we have two broad categories of numbers, real and imaginary. Real numbers are all of those numbers that exist in mathematics जिनको number line पे हम express कर सकते हैं. ठीक है, जो आम numbers हम देखते हैं 1 2 integers हो गए, fractions हो गए, decimals हो गए, all of those numbers are real numbers. Imaginary numbers वो numbers होते हैं जो कि number line पे express नहीं हो सकता. For example, जिस पे हमारा calculator एक syntax error show कर देता है. बास numbers for example अगर हम under root of any negative number लेने की कोशिश करें तो हमारा calculator एक error show कर देता है. So that means कि such number is not a part of the realm of numbers. यानी real number का part नहीं है, number lines पे वो number express नहीं हो सकते. ठीक है, तो imaginary numbers की story तो यहाँ पे end हो जाती है. Further on we'll obviously study के imaginary numbers को भी solve करने के तरीके होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे complex numbers and all. But for now, imaginary number is any number that does not exist in mathematics that cannot be expressed on a number line. For example, under root of any negative number. ठीक है, या हमारे पास बहुत सारे दूसरे numbers भी आ जाते हैं. Real numbers की story यहाँ से और continuous होती है. Real numbers की भी हमारे पास दो categories आ जाती हैं. We have rational numbers and we have irrational numbers. ठीक है, rational numbers are all those numbers that can be expressed as a fraction. यानी वो सारे numbers जिनको हम fraction में express कर सकते हैं वो rational numbers होते हैं. और irrational numbers क्या होते हैं भाई, जो कि हम लोग fraction में express नहीं कर सकते. ठीक है, and then ठीक है, इसके हमारे पास और भी categories आ जाती हैं. We have integers, we have decimals, ठीक है, we have fractions. तो ये सब इन सारी categories के अंदर आते हैं. But these are the broad categories जो मैंने यहाँ पे web बनाया. अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनटीएचपी के पेपर में देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि नंबर से रिलेटेड आते हैं. एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई आइडेंटिफाई करो विच नंबर्स आर रियल, विच नंबर्स आर इमेजिनरी, या विच नंबर्स आर रैशनल जो कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. तो उसके लिए द बेसिक एंड द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ नंबर्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस को भी हम देख लेते हैं, इनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सच नंबर्स, यू कैन फाइंड दिस इन द स्लाइड्स। रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, उसकी दो कैटेगरीज आ जाती है, वी हैव रैशनल एंड वी हैव इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, एंड irrational number is any number that cannot be expressed as a fraction, ठीक है। Similarly, imaginary number is a second category of numbers, which is basically कोई भी ऐसा नंबर जो कि मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता या जो कि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता। नंबर लाइन अगर मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊं तो इट्स सिंपली अ लाइन जिसपे हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। ऐसा कोई नंबर जो कि इस लाइन पे नहीं आता वो इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स की आप लोगों के पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है। अब आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स कुछ हैं भाई, रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर वो नंबर होता है जिसके साथ ना डेसिमल आ रहा हो ना फ्रैक्शन आ रहा हो। फॉर एग्जांपल 7 हो गया, -7 आ गया, 0 आ गया, दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और आपसे एग्जामिनर पूछे इज दिस अ रैशनल नंबर, तो यू आर गोइंग टू से यस, बिकॉज 2 के नीचे -2 के नीचे 1 है, ठीक है। Any integer, it has a 1 in the denominator, so such a number is a rational number as well. Number 2, we have all terminating decimals. Terminating decimals का मतलब है कोई भी ऐसा डेसिमल पॉइंट जो कि खत्म हो जाए एक जगह पे आकर, तो वो रैशनल है। यानी फॉर एग्जांपल 0.5, इट इज स्टॉपिंग एट 5, तो ये रैशनल नंबर है। 0.7 रैशनल नंबर है। 0.986 ये खत्म हो रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है एक जगह पे, तो ये रैशनल नंबर होता है हमारे पास। कुछ इसके कॉन्ट्ररी टू दिस हमारे पास कुछ डेसिमल्स ऐसे आते हैं जो कि कैलकुलेटर में बहुत बड़ा सा सवाल आ रहा होता है, 5, 7, 8, 9, 1, 0 एंड गोज ऑन एंड ऑन, ये कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा होता, तो ये आपके पास रैशनल की कैटेगरी में नहीं आता। सो वी हैव ऑल इंटीजर्स, वी हैव ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड नंबर 3, वी हैव ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। अब हो सकता है हमारे डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, कहीं कंटिन्यूस हो, लेकिन वो रिकरिंग हो। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर में देखा होगा कभी कभार आपका आंसर आता है 0.3333333, ये रिकरिंग है, एक ही डिजिट आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली 0.16666, दैट इज ऑल्सो अ नंबर विच कैन बी क्लासिफाइड एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज आपकी रैशनल नंबर पे आ जाती हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे आइडेंटिफाई करने का बोल दे, यू हैव टू कीप दीस 3 पॉइंटर्स इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा जी, irrational number क्या है? Irrational number is the opposite of rational. It is any number that cannot be expressed as a function. ये तीनों कैटेगरीज रैशनल में आ रही हैं, तो इनका ऑपोजिट क्या हो गया? ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। तो यहाँ पे आ गया ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, यानी रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर आप कैलकुलेटर में रूट ऑफ लेट्स सपोज 5 लेके देखें, नॉन परफेक्ट है ना ये। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं? 4 हो गई, ठीक है, 9, 16, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के रूट्स अगर हम निकालें, फॉर एग्जांपल 5 का रूट लो अगर आप लोग, ठीक है, यू टेक द रूट ऑफ 15, तो आपके पास बहुत बड़ा सा डेसिमल आता है जो कि ना के रिकरिंग है ना टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गया रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में। बाकी नंबर्स की कैटेगरीज में इतनी सारी चीजें नहीं आती, क्वेश्चंस में, टेस्ट होती पेपर में, बट रैशनल और इरैशनल के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स की क्या खासियत होती है कि उनमें ना डेसिमल्स होता है, नाइदर डू वी हैव अ फ्रैक्शन इन दैट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 हो गया, वी हैव 3, इनके साथ ना फ्रैक्शन है ना डेसिमल है। ऑब्वियसली एक अनसीन फ्रैक्शन है अपॉन 1 का, बट इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो इंटीजर्स आर ऑल दोस नॉन डेसिमल एंड नॉन फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में सिंपली यू हैव 2, 3, 5 जिनके साथ प्लस आ रहा हो। नेगेटिव इंटीजर्स में यू हैव -1, you have -2, you have -5, एंड न्यूट्रल इंटीजर में, न्यूट्रल इंटीजर में सिर्फ 0 आता है। इसके सवाल कैसे आते हैं भाई? एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लेट्स सपोज कोई भी सवाल वो दे देगा और वो कहेगा कि गिव यू आंसर एज अ पॉजिटिव इंटीजर और गिव यू आंसर एज अ न्यूट्रल इंटीजर। सो रिमेंबर, पॉजिटिव इंटीजर में कभी भी 0 नहीं आएगा, न्यूट्रल इंटीजर में कभी भी दूसरे इंटीजर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल इंटीजर सिर्फ 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स ये सारे हैं। पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी 0। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि 0 इज एन इवन नंबर, तो 0 पॉजिटिव भी है, नो 0 इज न्यूट्रल। तो ये क्वेश्चंस में छोटी छोटी हिंट्स हमारे पास इस तरह की होती है जिसमें हमें ये वाली नॉलेज काम आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने आपको दिया है भाई फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर x। अब ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। आपने इसको आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है, कॉमन लेकर। एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 4 आ गई। अगर किसी बच्चे ने ये दोनों आंसर सिलेक्ट कर लिए तो दैट पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज और हर मार्क्स। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर ने बोला है पॉजिटिव इंटीजर and 0 is not a positive integer, so your only answer is going to be x is equals to 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम आता है आपके पास ये कंसेप्ट। इसी तरह एग्जामिनर बोले फाइंड द नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है न्यूट्रल इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब है कोई भी ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है का मतलब है भाई न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो दीज आर द हिंट्स दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ। ठीक है, जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं दे आर मोर अबाउट स्मार्ट वर्किंग देन हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक बच्चा बहुत मेहनत करके सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर लेगा, बट अगर वो इन चीजों में कंफ्यूज हो गया, स्मार्टली उससे काम नहीं किया, so that person is going to end up losing his or her marks. So you have to act smartly. You have to take note of each and every instruction that the examiner is leaving for you, each and every trick that he is leaving behind for you. Positive है तो भाई neutral नहीं हो सकता। ठीक है, this was one example जिसमें आपका numbers का concept test हो जाता है। Moving ahead we have even numbers. Even numbers आप लोगों को सही से पता होगा कि भाई वो सारे numbers जो 2 के टेबल में आते हैं। Now 0 is an even number. 0 neutral है लेकिन 0 even number है। Odd numbers वो numbers that are not divisible by 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में वी हैव 0, 2, 4, 6। 0 कैसे इवन नंबर है? बिकॉज 2 zeros are is 0। ठीक है, तो 2 के टेबल में ये भी आता है। ऑड नंबर्स कौन से हैं भाई? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सो दीज आर जस्ट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आती है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल। या दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू so that you can distinguish between numbers। इसमें से हम लोग कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई ऑन फाइंडिंग फॉर द रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भाई वो नंबर्स होते हैं, नंबर 1 विच आर इंटीजर्स, नंबर 2 विच आर टर्मिनेटिंग, नंबर 3 विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो फॉर एग्जाम्पल ये रिकरिंग है, 7 1 7 1 7 1, ये रिकरिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ऑल ऑफ द इंटीजर्स ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो एक जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो ये भी आपके पास रैशनल है। इसमें इरैशनल कौन सा होगा भाई? इरैशनल होगा पाई। पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 3.142 होती है। नो, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू हम ले रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। इट इज नॉट समथिंग जो कि एग्जैक्टली इसको न्यूमेरिक फॉर्म में डिटरमिन कर सकेगा। सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन लेटर वर्ड्स, और इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, सो यू कैन लुक एट इट। ठीक है, ये आपके पास रैशनल नंबर्स आ गए और ये इरैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, ये मैंने सॉरी यहाँ पे लिख दिया है गलती से, दिस इज अ इरैशनल नंबर। ये रैशनल क्यों है? बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा। 7 1 फिर 7 7 1 फिर 7 अगर ये होता 0.71 7 1 7 1, ठीक है, तो ये रिकरिंग है। बट ये है 7 1 7 7 1 7 1, दिस इज नॉट रिकरिंग, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये रैशनल की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एंड यू कैन लुक एट द आंसर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, लेट्स लुक एट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स नाउ। प्राइम नंबर भाई वो नंबर होता है जो एक तो 1 के टेबल में आए और एक अपने टेबल में आए, यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, सो इट्स अ प्राइम नंबर। 3 सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आता है, सो इट्स अ प्राइम नंबर ओवर हियर। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स ये हो जाते हैं, यानी 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अब 1 जो है ना, 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? बिकॉज क्या हमारी जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि एक तो अपने टेबल में आए और एक जो है वो 1 के टेबल में आए। 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है, सही है, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर ओवर हियर। 2 is the smallest prime number, only even prime number, all other prime numbers are odd। यानी जो 2 है ना वो सिर्फ even prime number, वाहिद even prime number है, बाकी सारे odd primes हैं। So these are just some helpful pointers that can help you identify some questions। ठीक है, तो इनको जरूर कर लेना। कॉम्पोजिट नंबर्स भाई उल्टे होते हैं प्राइम नंबर्स के, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। 4 6 8 9 10, ठीक है, दैट कम्स इन
1 की टेबल में भी आता है और मल्टीपल अदर टेबल्स में भी आता है. So these numbers are composite numbers. Okay. अच्छा, now let's look at the addition and multiplication rules of even and odd numbers. अब अगर आपको एग्जामिनर सवाल दे दे भाई कि the product of 5 integers is odd, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. वो कह रहे हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटीजर्स, 5 इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर ऑड है तो व्हाट मस्ट बी द सम ऑफ दीज 5 नंबर्स. तो इसमें आपका टास्क होगा सबसे पहले ये 5 नंबर्स आइडेंटिफाई करना. आपको पता है भाई कि 5 इंटीजर्स में से कौन से ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट ऑड होगा. सो इट हैज टू बी 1. पांचों जगह पे 1 आ जाएगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली द सम इज गोइंग टू बी 5. सो दिस वाज वन क्वेश्चन जो इस तरह का टेस्ट हुआ था एक बार. ठीक है, आईबीए के टेस्ट में. सो यू कैन लुक एट इट. 5 इंटीजर्स पूछे हुए हो, प्रोडक्ट पूछ रहे हो, व्हाट इज द सम ऑफ द 5 नंबर्स. सो यू विदाउट एनी hesitation you can simply write 1 and add the numbers. These are some multiplication and addition rules for odd and even numbers. यानी अगर आप odd और odd number को add करोगे तो हमेशा even number बनेगा. For example, अगर if I add 3 and 5, both of these are odd. अगर मैं इनको add करूंगी तो आंसर जो आएगा ना वो even होगा. Similarly, अगर मैं even और even को add करूंगी आंसर वापस से even बन जाएगा. ठीक है. So these are something that you need to remember. इससे के अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है. ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो आंसर आपका ऑड ही आएगा. सो दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये कब काम आते हैं भाई? एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल जिसमें यू हैव टू चूज बिटवीन डिजिट्स कि कौन सा डिजिट यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आपका इवन आएगा. सो यू हैव टू रिलाई ऑन दीज रूल्स. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप स्मार्ट वर्किंग करके कर सकते हो, बट बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आप लोगों को याद रखनी इंपॉर्टेंट है. टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, दीज फॉर्मूलाज, सम रूल्स. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर सो दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ओवर हियर इज, ये तो हमने कवर कर लिया है, प्राइम और कॉम्पोजिट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी इट्स अ बिट ठीक है इजी, जो कि हम लोगों ने जनरली पढ़ा हुआ है. इसमें HCF और LCM ज्यादा काम का है. वील लुक एट इट. फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने का एक आसान तरीका बता देती हूँ भाई. अगर आपसे पूछें कि 64 के फैक्टर्स निकालो तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लेमैन टर्म्स में पहले 2 से निकालने के कहते हैं 2 के टेबल में भी आता है भाई, ये 8 के टेबल में भी आता है. इससे ना आपके पास सारे फैक्टर्स नहीं आएंगे. आपने क्या करना है, आपने 1 से स्टार्ट करना है और आपने एक सीक्वेंस में चलना है ताकि यू कवर ऑल ऑफ द फैक्टर्स. अगर लेट्स सपोज दे आस्क यू कि कितने फैक्टर्स हैं इसके, तो मेक श्योर यू स्टार्टिंग विद 1 ऑलवेज. आप हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे. यू आर गोइंग टू राइट 1 into 64 is 64. 1 हो गया. 2 पे आ जाओ भाई. 2 into 32 is 64. अब 3 पे आ जाओ. 3 के टेबल में अगर ये आता है तो इट्स ओके, अगर नहीं आता देन मूव ऑन टुवर्ड्स 4. 4 into 16 is 64. 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है. 8 into 8 is 64. जैसे ही ऐसी वाली कंडीशन रीच हो जाए कि 2 डिजिट्स आ जाए या आपने वो वाला जो फैक्टर है वो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, यू स्टॉप. देन व्हाट यू डू इज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इस तरह का आप एक सीक्वेंस बनाओगे एंड यू विल स्टार्ट काउंटिंग द फैक्टर्स. सो द फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64. तो ये सारी आप लोगों के पास भाई एग्जॉस्टिव लिस्ट है. ठीक है, दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट दैट यू हैव, और इससे आपके सारे फैक्टर्स कवर हो जाएंगे. सही है, ये आपका एग्जॉस्टिव लिस्ट हो गई. इसके अलावा एक काम की चीज आप लोगों ने नोट करनी है. अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है फॉर एग्जांपल 64 8 स्क्वायर है. ठीक है, सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं. अगर मैं कोई और नंबर लूं, लेट्स सपोज 32 लूं, 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे ना वो ऑड आएंगे. ठीक है, यू कैन ट्राई दिस. इसके फैक्टर्स निकालो तो 7 आएंगे प्रोबेबली, या 6 या 5 आएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी इवन. सही है, सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड. ठीक है, दिस इज समथिंग. ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये टेस्ट में हमें जो है ना क्लिक कर जाती हैं और हमारा टाइम बच जाता है. इंस्टेड ऑफ हैविंग टू फाइंड ऑल ऑफ द फैक्टर्स, मैं सिंपली मुझे एक चीज पता चल जाएगी भाई कि ये इवन होगा या ऑड होगी, तो मैं डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकती हूँ. अच्छा जी, इसके अलावा मल्टीपल्स अगर आपसे निकालने के लिए बोल दे एग्जामिनर, लेट्स सपोज अगर एग्जामिनर कहे भाई
कि यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स निकालने का आसान तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, या फैक्टर्स एक और तरीका अगर मैं बताऊं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल 32 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो आप इस तरह एलसीएम वगैरह लेकर यू कैन फाइंड द फैक्टर्स, लेकिन द इजीएस्ट वे इज दिस वे। ये कर लोगे तो उससे आराम से आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। अगर वो आपसे कहे 32 के मल्टीपल्स निकालो, सो दैट मीन्स 32 का टेबल लिखना है आपने। 132 इज 32, 32 ट्वाइस क्या नंबर होता है, 32 थ्रीजा क्या होता है, ये सब लिखना है आपने। तो मल्टीपल्स इज बेसिकली टेबल जनरली जो हम पढ़ते हैं, और फैक्टर्स आपके पास ये चीज होती है जो कि इस पर्टिकुलर चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं, या द थिंग दैट डिवाइड्स अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, so this is something that you have to use. Okay, अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने एनोटेशन अभी डिसेबल की है, और प्लीज इस तरह आप लोग नहीं किया करें, जरा मैं अभी वापस से रीशेयर कर लूँ स्क्रीन। चलो परफेक्ट है। या दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट भाई। अगर आपसे कहें एग्जामिनर कि आप जो है 3375 के फैक्टर्स निकालो या 225 के फैक्टर्स निकालो, तो एक बच्चा वो होगा जो उसके फैक्टर्स निकालेगा अलग से, 1337 5 times and all. That is going to be a bit hectic. लेकिन जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक पता होगी कि 15 स्क्वायर, 15 क्यूब, 15 टू द पावर ऑफ 4, 15 टू द पावर ऑफ 5, इन सब के फैक्टर्स एक ही होते हैं, so you can save your time. अगर आपसे 3375 बोल रहे हैं और आपको पता है भाई कि 15 टू द पावर ऑफ 3 है, तो आप 15 के फैक्टर्स निकालो, आपके पास फैक्टर्स बराबर आएंगे, सेम आएंगे। सही है, सो दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर इज ऑलवेज 1, लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपसे एग्जामिनर का है फाइंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 30, तो टाइम वेस्ट करे बगैर यू कैन राइट 1 बिकॉज द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसी तरह प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स में कॉमन फैक्टर भी 1 होता है। सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड, ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है। अच्छा, multiples भी I have told you, it is basically numbers that occur in the table of that number. Smallest multiple अगर 10 का आपसे पूछूं तो that is negative infinity. Largest multiple पूछूं तो वो positive infinity है। A number which is a factor and a multiple both, it is the number itself. अगर मैं 10 की बात कर रही हूँ, 10 multiple भी है, 10 factor भी है। ठीक है, 10 डिवाइड भी कर रहा है 10 को, और 10 10 के टेबल में भी आता है बिकॉज 10 1 times is 10. 0 is a multiple of every number. Again ये वाली भी, these are some pointers जो आप लोगों को कुछ questions आसानी से करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाते हैं मल्टीपल्स। अच्छा, किसी ने 15 वाली चीज पूछी है मुझसे, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक आसान चीज है। कभी कभार वो पूछ लेते हैं भाई आप 3375 या 225 के फैक्टर्स निकालो, तो फैक्टर्स ऑफ 15, 225 and 3375 is always going to be the same. यानी अगर मैं आपसे कहूँ 15, 15 स्क्वायर और 15 क्यूब के फैक्टर्स हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों की एक हेल्पफुल ट्रिक है विच यू कैन यूज। ये मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को। अच्छा, देन वी हैव दिस थिंग मल्टीपल्स ऑफ एन। अगर आपसे पूछे मल्टीपल्स ऑफ एन लिखो, तो n आ जाएगा, 2n आ जाएगा। 2n का मतलब है n मल्टीप्लाई बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय 3, n मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये सारी चीजें आपके पास मल्टीपल्स हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे एग्जाम में ना HCF और LCM को एंट्री टेस्ट में एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ठीक है, बिकॉज वो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत आ रहे होते हैं। अब हमारे पास HCF वाली जो चीज है ना, अगर लेट्स सपोज आपसे एग्जामिनर कह रहा है भाई कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 10, 4 नंबर से एक होल नंबर डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हिच नंबर। तो ये आपके पास होता है LCM का कॉन्सेप्ट। अगर वो कहें कि एक नंबर इन चारों नंबर से डिविजिबल है, तो वो किस दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा, तो इसकी हिंट ये होती है कि आपने इन चारों नंबर्स को उठा के LCM लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ का LCM ले लो 4, 5, 6 और 10 का। ठीक है, इसका LCM ले लेते हैं। 2 2 is 4, 5 एज इट इज आ गया, 3 is 6, 5 एज इट इज, देन वी हैव 2, 1, 5, 3 एंड 5 आ गया। 3 का टेबल ले लेते हैं हम।
ठीक है। आई होप एलसीएम तो आप सबको लेना आता होगा। टेक इट बैक टू 1, हमें इसको 1 1 वाला सिनेरियो बनाना होता है। 5 ले लो अब, तो ये सब आपके पास जैसे ही 1 आ गए तो हमारा एलसीएम यहाँ पे खत्म हो गया। इस एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लो। 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12 and 12 into 5 is 60। तो इसका मतलब है वो ऐसा नंबर जो इन चारों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, डिविजिबल होगा, दैट इज 60। तो हिंट ये होती है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हो भाई कि 4 नंबर्स हैं और कौन सा कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा, तो हिंट इज आइदर यू हैव टू गो विद एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम पे तब जाते हैं जब मल्टीपल डिविजिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और फैक्टर्स पे तब जाते हैं जब वो पूछे कि मैक्सिमम फैक्टर कौन सा है जो डिवाइड करे, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब आपसे वर्ड पूछ रहे हो मैक्सिमम का वर्ड यूज करा एग्जामिनर, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज करते हो। अगर आपसे एग्जामिनर लोएस्ट मिनिमम का वर्ड यूज कराओ तो आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यूज करते हो, ठीक है। सो दीज आर समथिंग दैट यू कैन यूज जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आए। अब अगर आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम की चीजें क्लिक नहीं करेंगी, सो यू विल गेट लॉस्ट ओवर हियर और समझ नहीं आएगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छा, देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। तो आपने इसमें से नंबर सिलेक्ट करना है जो 9 के टेबल में आता हो। अब ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू मेमोराइज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। यू माइट हैव लर्नड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन योर सेकेंडरी क्लासेस, बट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप लोग समझ लें तो आपको पता चल जाएगा जितना भी बड़ा नंबर है, वेदर ये 9 के टेबल में आता है नहीं आता, 2 के टेबल में आता है नहीं आता, ठीक है। इनमें से 2 रूल्स मैं बता देती हूँ, बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यू कैन रीड देम और इसको याद कर लोगे तो समझ आ जाएगा कि भाई ये नंबर 5 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, या 6 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल जब 5 के अगर कोई नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर हो, लेट्स सपोज 1250,000 आ रहा है एंड में, मुझे कैसे पता चले भाई ये 5 के टेबल में आता है, मैं लास्ट डिजिट देखती हूँ, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो ये 5 के टेबल में आ रहा हो। इसी तरह जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट इवन हो तो वो नंबर आपका इवन है, पूरा नंबर, ठीक है, 2 के टेबल में आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं मुझे 3 का देखना हो, 3 वाला देख लेते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है विच इज 528। मुझे जल्दी से गेस करना है भाई ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा। प्रोबेबली ये मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया है इस वक्त, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 लगा लेते हैं। मुझे देखना है कि ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आप इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करके देखो, यू ऐड द इंडिविजुअल डिजिट्स, इन सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 7 और ये 10 और 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस, तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो दीज आर सम रूल्स दैट आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, 6 7 8 9 ऑल ऑफ द नंबर्स आर गिवन ओवर हियर। इसको अगर आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है तो वो 6 के टेबल में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये वाला जो सवाल है ना, जो मैंने पीछे स्लाइड्स में इंक्लूड किया है, ये वाला, इसमें अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती होगी तो आप सिर्फ देखकर ही नंबर को आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 के टेबल में आ रहा है, वरना यू विल वेस्ट योर टाइम ओवर दिस। ये 1 मार्क का भी सवाल, मतलब ये बहुत इजी सवाल है, तो इसमें आप लोग 5-6 मिनट अगर लगाओ सबको डिवाइड करके देखो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर टाइम, और टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट। आगे ऐसे सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, फंक्शंस के, जिसमें आपने वाकई में टाइम लगाना होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद करो एंड यू विल नॉट वेस्ट टाइम ओवर दिस। ये बहुत जल्दी इस तरह के सवाल हो जाएंगे। ये वाला सवाल देख लो, ये भी मैंने HCF की वजह से इंक्लूड किया है। अ मिल्कमैन हैज 75 लीटर्स मिल्क इन 1 कैन। एक कैन में उसके पास 75 लीटर्स है और दूसरे कैन में उसके पास 45 लीटर्स है। तो आपसे सवाल ये पूछना है भाई मैक्सिमम कैपेसिटी कितना उसको जो है कंटेनर की चाहिए अगर वो दोनों जो है क्या कहते हैं मिल्क को स्टोर करना चाह रहा है नॉल। तो मैक्सिमम का वर्ड इज द की। मैक्सिमम का वर्ड शुड ऑलवेज गिव यू द हिंट ऑफ HCF। 2 आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं और वो पूछ रहे के मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, तो HCF ले लो दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर्स का अगर HCF लें हम 3 से पहले स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 एंड 5, देन वी हैव 15। फिर हम 5 लेंगे। 3 वापस क्यों नहीं लिया? बिकॉज HCF में हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों को डिवाइड करे। ये 3 से डिवाइड हो रहा था बट ये नहीं हो रहा था, तो मैंने 5 लिया, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 3।
अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके में 5 और 3 दोनों आए, तो आई स्टॉप ओवर हियर। एलसीएम में मैं 1 तक जाती हूँ, एचसीएफ में मैं वहां पे रुक जाती हूँ जहां पे नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो मेरा एचसीएफ का आंसर इज गोइंग टू बी 15। सो द आंसर ओवर हियर इज 15। अगर सवाल होता व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी, तो मिनिमम पे आप एलसीएम निकालते। तो एलसीएम और एचसीएफ में फर्क है, ये आप लोगों को नोट करना है। मैक्सिमम का वर्ड मीन्स एचसीएफ, मिनिमम का वर्ड मीन्स एलसीएम। मैक्सिमम में मैं यहाँ पे रुक गई, माय आंसर इज 15 लीटर्स। ठीक है। सो नंबर्स का टॉपिक जो है, एज आई डिस्कस्ड अबव, इट इज पर्टिकुलरली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी जल्दी इनको करना है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड डाली, ऑर्डर प्रॉपर्टीज की हुई। ये भी अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें मैंने कुछ ट्रिक्स हैं जो डाल दी हैं और आप लोगों को मेमोराइज करनी है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी से बड़ा है तो और बी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको कब हेल्प करेंगी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपसे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा नंबर इसमें से ट्रू है, कौन सी मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू एंड ऑल। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जिसके क्वेश्चंस हैं, मैं इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल बी केटरिंग दोस क्वेश्चंस। ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो वील ट्राई टू कवर द टॉपिक्स ना हमारे रह जाए। क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला एट द एंड वील टेक देम। ठीक है। ये हमारे जो है ना, दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस वर्कशॉप विच इज नंबर्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स थोड़ी सी डिटेल्ड बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है डिटेल, बिकॉज मैं इतना सारा कवर नहीं करा सकती, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सारी चीजें स्लाइड्स में डाल दूँ। तो अगर आप लोग क्लास के बाद मे बी स्लाइड्स या रिकॉर्डिंग को वापस से व्यू भी करोगे, तभी आप लोगों के हर चीज क्लियर आ जाएगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल दिस वन विच इज लेफ्ट, तो आप लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद करके यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो आप लोगों के पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे, विच इज अबाउट इंडिसेस एंड सर्ट्स। इंडिसेस एंड सर्ट्स का टॉपिक इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग द रूल्स। जिसको रूल्स याद नहीं हुए, जो रूल्स याद किए बगैर जाता है इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर टाइम, और मे बी बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिसेस एंड सर्ट्स को सॉल्व करना। तो ये रूल्स भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज मेमोराइज दीज रूल्स। पहला रूल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ द बेसिस आर सेम, अगर आपके पास बेसिस सेम हो, दो नंबर्स हैं, बेसिस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट, एक 2 है, एक लेट्स सपोज 3 है, the bases are same, the powers are different, and there is a multiplication sign in between, तो आप क्या करते हो, you take the basis common and you add the powers, 2 plus 3, आपका आंसर आ जाएगा 5 raised to the power of 5। इसको ऑब्वियसली आप अलग भी कर सकते हो, 5 पहले इसको पावर 2 करके निकाल लो, फिर 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 निकालो, बट ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो यू कैन यूज द इंडिसेस का रूल। सेकेंड रूल कहता है भाई आपके पास अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, एंड देयर इज अ डिविजन साइन इन बिटवीन, तो आप क्या करते हो, यू टेक बेसिस कॉमन एंड यू सबट्रैक्ट द पावर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 raised to the power of 1। So these are very basic rules that you can simply refer to जब आप surds या indices use कर रहे हो। तो if the base has a power and the whole thing has another power, we take base common and multiply the powers। अगर base के ऊपर power हो और whole thing के ऊपर एक और power हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, यू ओनली नीड टू टेक द बेस कॉमन and you need to multiply the powers। सही है। तो ये चीजें इंडिसेस के रूल से ही आप लोगों को आ सकती हैं। रूल नंबर 4, 0 raised to the power of anything is 1। 5 raised to the power of 0 लिखा हुआ हो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 6 raised to the power of 0 लिखा हो, इसका आंसर 1 आएगा। इसके सवाल कैसे आते हैं भाई, इसके सवाल बहुत आसान, एक आपको हिंट देते हैं, और वो जो कैच कर लेगा दैट पर्सन इज गोइंग टू solve the question successfully। For example, आपके पास हो 5x plus 2, 5 बेस है, x plus 2 is the power equals to 1। वो एग्जामिनर आपसे कह रहा है फाइंड x। अब आप कैसे करो, ये तो पावर में है, आप पावर को नीचे नहीं ला सकते, यहाँ पे तो 1 है, तो इसकी ट्रिक लाइज इन रूल नंबर 4। यू आर गोइंग टू राइट 5x plus 2 equals to 5 raised to the power of 0, यानी आप 1 को 5 raised to the power of 0 लिख दोगे। अब आप 5 5 कैंसिल कर दो और x की वैल्यू निकाल लो।
तो ये चीजें यू कैन ओनली रेफर टू यूजिंग द इंडिसेस वाला रूल। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने गेस भी कर लिया करेक्टली, so good job. Rule number 5 says any number raised to the power of 1 results in the same number. किसी भी नंबर के ऊपर 1 लगा हुआ हो तो उसका आंसर सेम नंबर होता है, उसका आंसर 1 नहीं होता। मे बी 100 के ऊपर 1 लगाया हुआ हो तो उसका आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली इजी रूल। 0 raised to the power of 0 does not exist, undefined, infinite. अच्छा जी, if the base has a negative power, in order to turn the power into positive we will reciprocate the base. रेसिप्रोकेट का मतलब है 5 है तो इसको 1/5 लिख दो, ये पावर माइनस से पॉजिटिव 1 हो गई अब। सही है, तो ये भी आप लोगों के बहुत जगह पे काम आएगा ये वाला रूल। 5 raised to the power of -1 है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है तो रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है 2 अगर हो उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। तो अगर 2 raised to the power of -2 होगा तो रेसिप्रोकेट करके 1/2 raised to the power of 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गई पावर। रूल नंबर 8 कहता है द पावर इज इन फ्रैक्शन, अगर पावर फ्रैक्शन में हो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट पावर इनटू अ रूट, इसको रूट बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर को बेस बनाओगे। डिनोमिनेटर जो है ना आपके पास, उसको यू मेक द बेस एंड न्यूमरेटर द पावर। सॉरी यहाँ पे बेस नहीं आना चाहिए, रूट आना चाहिए। ठीक है, सो यू मेक डिनोमिनेटर द रूट, जो डिनोमिनेटर है ना उसको रूट बना दो और न्यूमरेटर जो है ना उसको पावर बना दो। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और न्यूमरेटर पावर बन जाएगी। सो इसका आंसर हो जाएगा भाई 25√3। तो इसको मैंने इस तरह इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये जस्ट रिमेंबर द सेंटेंस, डिनोमिनेटर द रूट एंड न्यूमरेटर द पावर, डिनोमिनेटर द रूट, न्यूमरेटर द पावर, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। रूल नंबर 9 सेज if the bases are different, powers are same and there is a multiplication sign in between. अगर bases different हो आप भाई, एक 5 है एक 4 है, पावर सेम हो, मल्टीप्लिकेशन साइन हो, तो आप क्या करोगे, आप पावर को कॉमन ले लोगे और बेसिस को मल्टीप्लाई कर दोगे। उल्टा हो रहा है इसका। अगर बेसिस डिफरेंट हो, अगेन लेट्स टेक 25 और 5 ले लेते हैं, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, डिवीजन साइन है, तो आप पावर को कॉमन ले लोगे और बेसिस को डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 5 raised to the power of 2। सो दीज आर सम बेसिक रूल्स अगेन जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह यू कैन रेफर टू इट। अच्छा जी, देन वी कैन, किसी ने बोला है 5√5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो कब होगा 5√5 अगर हम लें, सॉरी ये बोल रहे हो ना आप 5 और 5, ये तब होगा लेट्स सपोज जब मेरे पास है 5 1/5। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर रूट बन गया और न्यूमरेटर पावर बन गई। ठीक है, सो दिस इज द केस विद दैट। अच्छा, इसके बाद जो है वी आर गोइंग टू लुक अपॉन सर्ट्स। अब सर्ट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। सर्ट्स में भी हमारे पास रूल्स होते हैं बट वो इतना डेफिनेट रूल्स नहीं है, उनमें आपको सिर्फ रैशनलाइज करना होता है। अगर आपसे एग्जामिनर कहे 32√, है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है स्क्वायर रूट लेना। ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट ले लो इसका। 2 1s are 6, ठीक है, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 के पेयर्स, तो 2 के पेयर्स बनाने हैं आपने। जो नंबर पेयर के बगैर रह जाए ना उसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर रहने देना है, और जिन नंबर्स का पेयर बन जाए उनका एक एक नंबर उठा के बाहर रख देना है। 2 एक इसका आ गया और एक इसका 2 आ गया, तो दिस इज 4√2। जनरली कैलकुलेटर में अगर आप डालो इसको तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आता है इसका। सही है, सो यू कैन कन्वर्ट, ये पहला आपके पास सर्ट्स का आता है जब आप रूट्स को सिंप्लीफाई करते हो। रूट्स को सिंप्लीफाई करने का मतलब है स्क्वायर रूट लेना, पेयर्स बनाना एंड देन यू डू दैट। क्यूब रूट होता है तो 3 के पेयर्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा भाई आ जाता है, लेट्स सपोज आपके पास अंडर रूट, या इसको 4 ले लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय √3। एग्जामिनर कह रहा है सिंप्लीफाई करो, आप कह रहे हो भाई ये सिंप्लीफाइड तो है, नो दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड। आपके पास मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड।
कैसे सॉल्व करोगे इसको? यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द रूट। मैथ्स में कोई भी assumption लो, अपनी तरफ से ऐड करो, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करो, मेक श्योर यू डूइंग द सेम इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। समवन कॉल्ड इट रैशनलाइजिंग, यस दिस इज रैशनलाइजिंग, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 आ गया, और ये रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट सिर्फ 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो है अब आपके पास सिंप्लीफाइड है। न्यूमरेटर में रूट आए डजंट मैटर, डिनोमिनेटर में आए यू हैव टू फिक्स इट, ठीक है। ठीक है, इट्स ओके, यू कैन डिस्कस ऑल ऑफ द थिंग्स इन द चैट बॉक्स, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। सब इंटरैक्ट करते रहो और मुझे बताते रहो अगर समझ आ रहा है तो। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं भाई। थर्ड जो है हमारे पास आ जाता है, थर्ड जो फॉर्म आता है, थर्ड जो रूल आता है वो आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। एक इस तरह का है भाई, और एक आपके पास डिनोमिनेटर में, लेट्स सपोज ये थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 रख देते हैं और डिनोमिनेटर में हम रखते हैं 2 + √3। इस रूट को कैसे खत्म करोगे? अब आप रैशनलाइज तो करोगे, बट नाउ यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट का मतलब मैथ्स में होता है उल्टा, a माइनस बी का कॉन्जुगेट होता है a प्लस बी, तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - √3। तो आप ऐसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्जुगेट होता है, दिस इज द कॉन्जुगेट। दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सो यू विल गेट योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 4 - 2√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय, इधर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी आइडेंटिटी? a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b इक्वल्स टू a² - b²। सो a² - b²। इसको सॉल्व कर लोगे सो यू विल गेट योर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है। अगेन अगर किसी को आइडेंटिटी समझ ना आ रही हो भाई, इसको मैनुअली मल्टीप्लाई कर लो तब भी सेम आंसर आएगा। मैनुअली मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट्स को, 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा, ठीक है। जिसको आइडेंटिटी समझ आ रही हो यू कैन यूज आइडेंटिटी, वरना यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट। अच्छा जी, लास्ट रूल का बता देती हूँ सर्च का, और मेरे ख्याल से रूल नहीं है, दैट इज सिमिलर, बट उसमें सिर्फ एक वेराइटी ये आ जाती है कि आपके पास न्यूमरेटर में भी रूट आता है और डिनोमिनेटर में भी रूट आ रहा है, लेट्स सपोज। तो अब आप क्या करोगे, आपने डिनोमिनेटर को देखना है और मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी प्लस से मल्टीप्लाई करोगे आप। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमरेटर में भी रूट है डिनोमिनेटर में भी। भाई न्यूमरेटर में रूट जाए या ना जाए डजंट मैटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो कैसे हटेगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। किसके कॉन्जुगेट से? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट। तो ये 2 + √3, 2 + √3। अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो सो यू विल गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये 4 रूल्स आ जाते हैं एक्सप्लिसिटली, इनको लिखा जा नहीं सकता, इनको समझाया जाने वाली चीज थी, तभी मैंने ये चारों स्लाइड्स में सर्च के आप लोगों को समझा दिया। सर्ज और इंडिसेस के सवाल कैसे आएंगे भाई? सिंपल सवाल आएंगे मैथ्स वाले, इस तरह के वो देगा, वो कहेगा सिंप्लीफाई करो उसको, तो यू हैव टू लर्न दीज एंड मेमोराइज दीज रूल्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट। इंडिसेस सर्च के प्रॉब्लम सम्स में ज्यादातर नहीं आते सवाल, ऐसे ही आते हैं। प्रॉब्लम सम्स में नंबर्स के सवाल आते हैं, HCF वाला मैंने दिखाया, मैक्सिमम एंड ऑल, तो वो चीजें आप लोगों ने देखनी है फॉर श्योर, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आ जाते हैं अलजेब्रा पे, ठीक है। हमारा एजेंडा थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक्स का है, बिकॉज हमें कवर करनी है इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में। क्वेश्चंस में आप लोगों के अगर हैं भी तो आई टेक देम एट द एंड। हम अलजेब्रा को देख लेते हैं। अलजेब्रा में पहले तो भाई वो आ जाती हैं चीजें जो आप लोगों को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आइडेंटिटीज। ये वाली आइडेंटिटी हो गई, a - b वाली हो गई, a² - b² वाली हो गई, जो मैंने अभी यूज भी की थी। इसके अलावा कौन सी आइडेंटिटीज याद करें हम? अगर आप लोगों को ज्यादा आइडेंटिटीज याद करनी है, अगर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यू कैन मेमोराइज दिस आइडेंटिटी, ठीक है, और यू कैन मेमोराइज दिस आइडेंटिटी क्यूबिक वाली। इसके अलावा आइडेंटिटीज टेस्ट नहीं होती, बहुत लॉन्ग लिस्ट होती है आइडेंटिटीज की, बट दीज आर द प्राइमरी वंस, इनसे काम हो जाता है और इन्हीं से हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर इतनी आसानी से सिंपल टर्म्स में नहीं देता। एग्जामिनर आपसे कहेगा भाई इफ a² - b² इज 800, अगर a² - b² 800 के बराबर है और
a प्लस बी अगर 10 के बराबर है तो a माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? सही है, तो आपसे वो पूछेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर किसके बराबर है, तो आपने भाई इसमें लगानी है आइडेंटिटी। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो आपने इसमें आइडेंटिटी लगानी है एंड यू कैन देन फाइंड द आंसर टू इट। अच्छा जी, नो 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 नो, आई थिंक मैंने गलत आइडेंटिटी लगाई है। इसमें हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, सॉरी। सो वी हैव द थर्ड आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो मैंने ये देखा था, दिस इज 800, यहाँ पे 800 लिख दो। a माइनस बी मुझे निकालना है, तो a माइनस बी को एज इट इज रख दो। a प्लस बी इज 10, तो इसको 10 रख दो। तो a माइनस बी जो है मेरे पास आ जाएगा भाई 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। a माइनस बी 80 है, तो a माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 80 का स्क्वायर। सो दिस इज 6400, तो आपका आंसर 6400 आ जाएगा, ठीक है। या 6400 आएगा ना, या। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वाला सवाल भी ट्राई करना है, यू कैन ट्राई दैट। आपसे इसमें ये चीज दी हुई है, वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो। तो अब आपने फिगर आउट करना है कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं मैं, तो इसमें a प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी वाली मैंने x और y लिख दिया है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, x प्लस वाई 20 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैंने इसको एक साइड पे कर दिया, और प्लस 2xy मुझे 30 दिया हुआ है, तो आप इसको इधर ले जाओ। दिस इज 400 माइनस 60 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया विच एवर एग्जामिनर हैज रिक्वायर्ड, सो दिस इज 340। इस तरह एग्जामिनर आइडेंटिटीज टेस्ट करता है, और इस तरह यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटीज टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। तो आइडेंटिटीज बिल्कुल लेमैन हमारी सेकेंडरी मैथ्स की तरह नहीं आएंगी, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आएंगी। अच्छा, इसके बाद भाई लॉजिक आ जाती है एक्सप्रेशन इक्वेशन की। पता होगा आप लोगों को, एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें जीरो नहीं होता, इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है। इक्वेशन वो होती है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर मैं 3x प्लस वाई लिखूं, ये एक्सप्रेशन है। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है भाई, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ी हैं, कैसे कि हम दो हमें दी होती है इक्वेशंस, इसको हम सब्स्टिट्यूट वगैरह करके बताते हैं कि आंसर क्या निकलेगा। हमें एंट्री टेस्ट के वक्त ये इतनी ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, लेकिन जो अडेप्टिव चीज में जल्दी जल्दी कर लेता है, दैट पर्सन कैन डू दैट। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है भाई कि ये इक्वेशन है, इसमें एक सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, यानी एक सोल्यूशन आ रहा है, जीरो सोल्यूशन आ रहे हैं, या बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं, आपने बस ये बताना है एग्जामिनर को। तो उसके लिए आपने जो है, यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज। ये हमारे पास रेशोज हैं, इन रेशोज को मैं समझा भी देती हूँ, और ये रेशोज आपके इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा काम आएंगे। इस इक्वेशन के थ्रू रेशोज को समझते हैं। पहली चीज इन रेशोज को यूज करने की ये है भाई, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए बेसिकली, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में होनी चाहिए। पहले एक्स आए, फिर वाई आए, फिर कांस्टेंट आए, ठीक है। सो इन रेशियोज को यूज करने के लिए योर इक्वेशन हैज टू बी इन दिस फॉर्म। दूसरी इक्वेशन आ गई भाई 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है इन दोनों सोल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन में, इनको अगर मैं से सॉल्व करूं तो एक सोल्यूशन आ रहा है, जीरो सोल्यूशन आ रहे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये रेशियोज कैसे यूज करने हैं? a1 का मतलब है ये वाली चीज, जो x के साथ वेरिएबल है दैट इज a1, नीचे वाला जो x के साथ है वो a2 हो गया। y के साथ जो कोएफिशिएंट है ना, वो मेरे पास हो जाता है b1, नीचे वाले y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो c1 हो जाएगा, और नीचे वाला c2 हो जाएगा। अब आप रेशियोज बनाओ सिर्फ। अगर आपके पास a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाई c2,
तो आपके जो सोल्यूशन सेट होंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है तो 0 सोल्यूशन। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो 1 सोल्यूशन। इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करके रेशियोज बनाते हैं भाई। A1 डिवाइडेड बाई A2 2/4, B1 डिवाइडेड बाई B2 1/2, ठीक है, इक्वल्स लगा देती हूँ अभी से ही। और यहाँ पे क्या आ रहा है, C1 डिवाइडेड बाई C2 30/1। तो ये दोनों तो बराबर हैं एक दूसरे के, बिकॉज ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट दीज टू आर नॉट इक्वल्स। तो जब ऐसा वाला सिनारी होता है तो मेरे पास क्या सोल्यूशंस होते हैं, 0 सोल्यूशन। यानी इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ ना तो मेरे पास 0 सोल्यूशंस आएंगे। और ऐसा कब होता है, जब लाइंस मेरी पैरेलल होती हैं, जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होती तो 0 सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो ये रेशियोज आपके लिए बहुत काम आएंगे इफ यू आर इंटेंडिंग टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस, या आपके पास कोई अननोन वेरिएबल दिया हुआ तो उससे भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसके रेशियोज बनाते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। रिमेंबर आपने साइन भी यूज करना है, ये प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, माइनस होता माइनस लिखते हैं यहाँ पे। C1/C2, यू कैन सी के ये सारे जो है ना बराबर हैं, ये भी 1/9 है, ये भी 1/9 है। तो कौन सा वाला सिनारियो है भाई, फर्स्ट सिनारियो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होती है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही होती है। एक लाइन है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन लाई कर रही है, तो सारे पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड देख लेते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 C1/C2। ये इसके बराबर नहीं है, तो थर्ड वाला तो मैटर करता ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो ये आपके पास होगा हमेशा 1 सोल्यूशन वाला। 1 सोल्यूशन वाला कौन सा सिनारियो होता है भाई, 1 सोल्यूशन वाला आपके पास होता है ये वाला सिनारियो, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो दिस इज 1 सोल्यूशन। ये जनरली इस वाली चीज में भी काम आ जाता है, और ज्यादा काम ये वाली नॉलेज तब आती है जब एग्जामिनर आपको भाई अननोन वेरिएबल दे देता है। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है आपके पास, 2 सॉल्यूशंस हम क्वाड्रेटिक में आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, लीनियर की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन होता है जो कि 1 पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट 1 होता है उसका, 2 पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती लीनियर, ठीक है। तो आपके पास आइदर इनफाइनाइट, जब दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हो, 2 पॉइंट्स पे क्वाड्रेटिक इंटरसेक्ट करती है, क्वाड्रेटिक इसमें हमने कवर नहीं किया है। अच्छा, अब ये काम कब आएगा, एग्जामिनर कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का सिस्टम हैज मोर देन 1 सोल्यूशन। मोर देन 1 का मतलब है इनफाइनाइट। लाइंस के केस में 2 पे नहीं आते, हम इनफाइनाइट पे जाते हैं डायरेक्ट। मोर देन 1 का मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर, बी की वैल्यू क्या है आपको पता है। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो रेशो आपका बनता है भाई इस तरह कुछ, A1 डिवाइड बाई A2 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 डिवाइड बाई C2। तो इस चीज को यूज आप करोगे b को फाइंड करने के लिए। तो यू राइट 2/6 इज इक्वल्स टू -3/b। माइनस है तो माइनस लो b। क्या मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू b। तो b आ गया -9। तो ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में काम आता है जब आपको अननोन फाइंड करना हो। -9, किसी ने 9 बोला है, गलत जवाब हो जाएगा, माइनस को लेना है आपने। रेशो में इंक्लूड माइनस, इधर माइनस होता तब भी लेती मैं, तो साइन मैटर करता है, ठीक है। ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस मैंने सॉल्व कर दिया था पहले। नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन में आप ये वाली चीज उठाओगे और आपने पूछ लिया। एग्जामिनर आपसे पूछे भाई के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना, ये वाली नहीं हो सकती और ये हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हैज नो सोल्यूशन, ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, नो सोल्यूशन का मतलब है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइड बाई C2, राइट। ये होता है नो सोल्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो अब हम यहाँ पे लग करते हैं पहले 3/21 5/35 इक्वल्स टू 7/k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, अब k तो इस पार्ट में आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है ना k, और इसमें कंडीशन है नॉट इक्वल्स टू, तो आप नॉट इक्वल्स टू के साथ सॉल्व करो पहले। 7 आ गया। k इज नॉट इक्वल्स टू 49, इसका मतलब है k की वैल्यू 49 नहीं हो सकती, ये दोनों हो सकती हैं। तो इस तरह के भी सिनेरियोज आते हैं। सो गोइंग टू गो विद 1 and 2 ओनली।
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। 49 नहीं हो सकती, 49 नहीं हो सकती, बाकी दो वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, और क्या हमारे पास आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ये भी एक एंट्री टेस्ट का सवाल है। एग्जामिनर कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सवाल बहुत आते हैं इस तरह के, मैंने 2-3 पेपर्स में देखे कि इस तरह के सवाल आए, तभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो इसको साथ में सॉल्व करते हैं। अब इसमें अलजेब्रा का इस तरह लिंक है कि मुझे आइडेंटिटीज बनानी है। मैथ्स में जब भी आप अपनी तरफ से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर रूट करो, मेक श्योर आप इवन आउट करो उसको। मैं दोनों को यहाँ पे स्क्वायर कर देती हूँ, तो मैंने दोनों को स्क्वायर किया ना, तो इवन आउट हो गया। अब आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर रह गया x प्लस दिस इज 36 माइनस 2। ओके, यहां तक ये हो गया। इसको आगे कर लेते हैं सॉल्व मजीद। ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 34। मुझे 4 वाली पावर चाहिए, मैं वापस स्क्वायर कर लेती हूँ उन दोनों को। ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर निकाल लिया भाई आप लोग। 34 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 1156 आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, x4 प्लस 1/x4 1156 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया भाई, मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था ये क्या है, जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो ये आ गई मेरे पास 1156 माइनस 4। माई आंसर इज 1154। ये बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, सो मेक श्योर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने कर लिया था, कीप इट अप। अच्छा जी, अब हमारे आज के एजेंडा में वी हैड मैट्रिसेस एंड सेट्स। मैट्रिसेस और सेट्स में आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग बहुत वेल वर्स्ड होंगे, ठीक है, बिकॉज मैट्रिसेस और सेट्स जो है वो एफएससी मैथ्स का बहुत मेजर चंक होता है। ठीक है, तो इस पे भी चलो हम लोग देख लेते हैं कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को, और फिर हमारा जो है इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक होगा जिसपे हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। तो आज के एजेंडा में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नंबर्स है, सेकेंडली वी हैड अलजेब्रा, एंड थर्डली वी हैव इनइक्वालिटीज। उसमें यू हैव टू पे प्रायर अटेंशन। मैट्रिसेस और सेट्स को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, इनकी मेन चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, मैट्रिसेस क्या होते हैं भाई, आपको पता है, मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज 1 और यहाँ पे 2 5 एंड 4 आ रहा है। एक और मैट्रिक्स आ रहा है व्हिच इज लेट्स सपोज 3 6 1 8। दीज आर टू मैट्रिसेस। अगर आपसे एग्जामिनर कहे a प्लस बी निकालो, तो आप क्या करोगे, हर एलिमेंट को उस एलिमेंट से ऐड कर दोगे। तो a प्लस बी इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 6 इज 11, 4 प्लस 8 इज 12। इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस में अगर ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। अगर जो है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन भी नहीं हो सकती, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती। इसी क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन 1 2 5 4 3 6 1 8। एग्जामिनर कह रहा है भाई ये ए है और ये बी है, आप निकालो ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इसमें जो है ना कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, बट आपने क्या करना है, यू हैव टू एम्प्लॉय फ्रेंच डाइव का मेथड। फ्रेंच डाइव क्या होती है, आप भागते हुए जाते हो एंड देन यू डाइव इन, ठीक है, यू गो रनिंग एंड देन यू डाइव इन, तो ये आपने यूज करना है। फ्रेंच डाइव यूं, यानी आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 2 इंटू 6 इज 12। ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर आप फ्रेंच डाइव इधर से करोगे, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 8 इज 16। फिर नीचे आ जाओ, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 4 इंटू 6 इज 24। 5 into 1 is 5 plus 4 into 8 is 32.
तो ये आप लोगों का 1 स्टेप सोल्यूशन है फॉर ऑल ऑफ योर मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स फ्रेंच टाइप में, ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, आई एम श्योर। इसकी कुछ चीजें बता देती हूँ मैं मैट्रिसेस में जो ज्यादा काम की चीजें हैं, देन द मेथड्स। फ्रेंच ड्राइव से हो जाएंगी चीजें सॉल्व आप लोगों की इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे ए बी का आंसर इज इट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी, यानी ए बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ए मैट्रिक्स पहले था फिर बी था, अगर मैं बी ए निकालूं, मैंने पहले मैट्रिक्स बी को रखूं फिर ए को रखूं, तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? फर्स्ट को कॉलम और सेकंड रो ऑर्डर हो तो मल्टीप्लाई नॉट इक्वल, यस। नहीं सिमरन, आई एम सेइंग कि इक्वल जो है ना आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिसेस नीड टू बी इक्वल। अगर इक्वल होंगे ऑर्डर तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेगा। मल्टीप्लिकेशन के यस यू करेक्ट, ठीक है। आई एम नॉट हाईलाइटिंग दिस थिंग बिकॉज मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, जो चीजें काम की है ना ज्यादा वो रह जाएंगी। मैट्रिसेस का टॉपिक इट्स बिल्कुल सिंपल आता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो आता होगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ, बट यू आर राइट कि जब हमारे पास रो और कॉलम वाला मसला हो तब आता है। और कॉम्यूटेटिव वाली जो चीज है वो मैंने बताई थी भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर रो और ऑर्डर सेम होता है ना आपका ऑर्डर, तब ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। यानी अगर इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूं दोनों का, एक का 2/2 हो एक का 1/2 हो, तो यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। वो ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में था, और इसके बारे में तो ऑब्वियसली फ्रेंच ड्राइव लगनी चाहिए, रो एंड ऑर्डर वाली चीज जो आपने बोली है, रो एंड कॉलम वाली। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर कहे इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, नॉट, नो। अगर आप ए बी निकालो, यानी पहले ए को रखो फिर बी को रखो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और बी ए निकालो, यानी पहले बी को रखो फिर ए को रखो, आंसर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हो लेटर्स की तो आंसर सेम नहीं आता। दिस इज वन फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइड फ्रॉम द कैलकुलेशन। दूसरा भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों को अच्छे से आता होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। एक जीरो मैट्रिक्स आता है। जीरो मैट्रिक्स होता है भाई 0 0 0 0, सारे मैट्रिसेस में यू हैव जीरो, ठीक है। लेट मी टेक आउट अ क्वेश्चन और हम इसका एक देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ओके, सो लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मैट्रिसेस में ज्यादा नहीं करवाना चाह रही ताकि हमारा जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे ज्यादा एम्फेसिस हो, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स ओवर हियर। अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है भाई? मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, लेट्स सपोज हम यही वाला मैट्रिक्स उठा लेते हैं, 1 2 5 और 4, 1 2 5 एंड 4। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों चीजें जो है ना आपके पास, ये दोनों इनकी जो है साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों की साइड्स चेंज हो जाती है, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नो आई थिंक इसकी साइड्स, नो 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 2 मिनट, ओके, अपॉलॉजीज। इन दोनों की जो है ना साइड्स, इन दोनों के साइंस चेंज हो जाते हैं और इन दोनों की साइड चेंज हो जाती है, यानी ए जो है इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। तो डिटर्मिनेंट को आपने इससे मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो आपके पास आ जाता है योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये साइंस चेंज हो जाती है ना, एग्जैक्टली ये आपके पास प्लस है तो माइनस आ गया ना, ये मैंने बोला है द साइंस आर चेंजिंग। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो साइंस चेंज और इसकी जो है साइज चेंज हो जाती है, ये आपके पास इनवर्स आ जाता है। अब इनवर्स के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है आपका वो हो जाता है भाई, लेट्स टेक अ डिफरेंट मैट्रिक्स। 2 मिनट में एक और मैट्रिक्स निकालती हूँ। लेट्स गो विद 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप यूं करते हो, क्रॉस में जाते हो, ठीक है। 2 into 5 minus 3 into 4, this is the determinant, 10 minus 12, so -2,
ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर डिटर्मिनेंट, जिसको आप ए डी माइनस बी सी भी बोलते हो। यानी अगर मैं इसको लेटर्स में लिखूं तो ए बी सी डी है ये, तो डिटर्मिनेंट इज ए डी माइनस बी सी। सही है। तो अगर आपको इनवर्स निकालना हो किसी मैट्रिक्स का तो आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और फिर इस तरह साइंस चेंज करके देन यू मल्टीप्लाई दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आता है, कैन सी दैट। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं करते अपना एलोकेट। एंड देन देर इज दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें इसके आने के चांसेस, ये तो 3 by 3 मैट्रिक्स होता है, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट इसके आने के चांसेस लाइक स्लाइटली लेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया ये कि कैसे आप लोग इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो एंड हाउ डू यू फाइंड द इनवर्स एंड ऑल। सो दिस इज वन हेक्टिक कैलकुलेशन दैट यू कैन डू। ठीक है, बट आई एम श्योर कि मेरे ख्याल से इससे अभी आगे की चीजें मैट्रिसेस की आप लोगों को आती होंगी, बिकॉज मैट्रिसेस इज द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एफएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर आप ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे, सॉरी सीक्वेंस चेंज करोगे तो द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी सेम। आइडेंटिटी पढ़ लिया हमने, जीरो मैट्रिक्स पढ़ लिया और हमने डिटर्मिनेंट और इनवर्स पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर मैट्रिसेस। ठीक है, लेट मी सी अगर मेरे पास कोई टेस्ट का सवाल है विच वी कैन डू तो वो कर लेते हैं, वरना मेरे ख्याल से दिस इज इट। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ मल्टीप्लिकेशन वाली की, जिसने ऑर्डर और रो वाली बात की थी, ताकि बाकी सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर किसी को मसला है तो मैंने ये कहा था भाई कॉम्यूटेटिव वाला रूल कि अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऑर्डर सेम हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन आपने देखना होता है कि रोज और कॉलम्स जो है ना वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला मैट्रिक्स है मेरे पास और एक ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अगर आपको रोज एंड कॉलम वाली बात समझ भी ना आए ना तो मेरी फ्रेंच ड्राइव लगा के देख लेना। यहाँ पे यू गो रनिंग एंड देन यू गो डाउन, तो यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है भाई कि द रोज शुड बी इक्वल टू द कॉलम्स, रोज कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्सेस की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर मल्टीप्लिकेशन का रूल। फ्रेंच ड्राइव लगा लेना, यहाँ पे देखो यूं करा और फिर यूं, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो किस स्टूडेंट्स को रोज एंड कॉलम्स वाली बात नहीं समझ आती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर दिस रो इक्वल्स टू कॉलम, समवन मेंशनड इट, तो यस यू कैन डू दैट। इनवर्स का भाई ये है कि आप डिटर्मिनेंट निकालो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट करो, और आपने क्या करना है इन दोनों इन ये जो वाले जो दो नंबर्स है ना इनकी आपने साइड्स चेंज करनी है, यानी ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों नंबर्स का आपने साइन ऑपोजिट कर देना है, यानी अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यानी आपने अगर मैं यहाँ पे इसको लेटर्स में लिख के दिखाऊं तो ए और डी को आपने स्विच कर देना है। ठीक है, स्विच जिस तरह आपने मतलब जो ए है वो डी की जगह पे चला गया, डी ए की जगह पे आ गया, और बी और सी को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है साइन ऑपोजिट हो जाना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा, फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो यू विल गेट योर इनवर्स मैट्रिक्स। सही, सो दिस इज बेसिकली रो कॉलम वाला समझ नहीं आया 2 मिनट भाई, रो कॉलम का क्या सीन था जल्दी से देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली रो कॉलम्स। आपका जो फर्स्ट मैट्रिक की रो है इसमें कितनी रोज हैं, इसमें है आपके पास कितनी 3 रोज हैं, राइट 3 रोज हैं, और कॉलम्स आपके पास एक है, राइट। तो ये इसका क्या कहते हैं, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी 2 हैं कॉलम भी 2 हैं, तो ये जो एंड वाला है ना ये मैच करना चाहिए। एंड वाला देख लो या रोज को देख लो, रोज शुड बी इक्वल टू द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड वो जहाँ पे नहीं है दैट इज व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस। और दूसरा इसका हिंट ये है कि आप फ्रेंच ड्राइव लगा लो। देखो सबसे पहले हम भागते हुए जाते हैं सीधा एंड देन वी गो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। सही है, इसी तरह यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ तो एक नंबर है फिर 2 आ रहे हैं, सो आई कैन नॉट डू दैट। सही है, सो दैट इज व्हाई वी कैन यहाँ पे। और इसका आसान एक और तरीका ये भाई, ऑर्डर लिखो और लास्ट वाले डिजिट को देख लो, अगर ये दोनों डिजिट सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नॉट पॉसिबल है। वरना जिसको कंसेप्ट कैलकुलेशन आसानी से जो कर लेता है ना वो अगर
उसको ये चीज समझ ना भी और वो कैलकुलेट करने बैठ जाए, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करते वक्त भी एहसास हो जाएगा कि नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई, बिकॉज एलिमेंट्स ही एक में कम होंगे एक में ज्यादा होंगे, तो वहां पे भी यू कैन कंक्लूड कि दिस टू आर नॉट पॉसिबल, वरना ये रो कॉलम वाली चीज आप याद कर सकते हो। ठीक है, सो द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड। अगर ये बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सेट। अगेन सेट वाला टॉपिक भी इतना हमने डेप्थ में नहीं पढ़ना, बिकॉज सेट भी आप लोगों के करिकुलम का बहुत जो है ना इंटेग्रल पार्ट होगा। इसमें आई विल ट्राई टू सी इफ वी हैव एनी अदर यूनिक क्वेश्चन जो हम इससे स्टार्ट कर सकें। ठीक है, मैट्रिक्स का तो हमारे पास यहाँ तक आ जाता है, सेट का 2 मिनट मुझे आप लोग दें जरा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाती हूँ। अच्छा, सेट्स में हम एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले विल जस्ट गो अहेड टुवर्ड्स क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द बेसिक्स। या अगेन जिसके क्वेश्चंस हैं प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस, एंड में हम लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे। अभी वी आर स्ट्रिक्ट ऑन एन एजेंडा। ये आप लोग स्लाइड्स देख रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड्स बनाई हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग इस पे अगर एक बार इनको गो थ्रू करोगे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह को, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट रियली वेरी फुली। ठीक है, वरना मैं एक स्लाइड में भी 2 स्लाइड में भी पूरी वर्कशॉप करवा सकती थी सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, बट अलग से मैंने सारी चीजें लिखी हैं ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंट्री टेस्ट में भाई पहली चीज आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाऊंगी या जाऊंगा और सारे क्वेश्चन कर लूंगा, डोंट डू दैट। फर्स्ट मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर crystal clear and then hop on towards the questions, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके जो सारी एंट्री टेक्स्ट के क्वेश्चन उनके बीच में ना आए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे देन क्वेश्चंस करो। पढ़ने का यही तरीका होता है कि पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, एंड देन गो ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर बगैर पढ़े बगैर फॉर्मूला देखे क्वेश्चंस करने जाओगे, एट फर्स्ट मोमेंट ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर आगे कोई क्वेश्चन करने का दिल नहीं करेगा। अच्छा, सेट को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं यार। सेट की हमारे पास टाइप्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं, एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे वी हैव अ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, व्हाट आई कैन डू फॉर सेट्स इज के मैं जो है ऑल्दो आई थिंक आई एम नॉट इन द ग्रुप, बट आई कन्वे अ पीडीएफ जो कि सेट के जिसमें नोट्स होंगे सारे, तो वो आप लोग वहां से जो है ना सारी अंडर जो मतलब जो मटेरियल है ना रीडिंग का, वो वहां से आप लोग देख सकते हैं, वरना बाकी टॉपिक्स का तो स्लाइड्स में इंक्लूडेड है। सेट का मैंने इसलिए नहीं डाला था बिकॉज सेट इज जनरली इजी टॉपिक, तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेंगे। एक यूनिवर्सल सेट आता है भाई, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे सेट था, जिसमें सारे नंबर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ई लिखूं, ठीक है, और इसमें सारे नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 ऑल द वे टिल 10, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है मेरा, जो कि मेरा एक कॉम्पोजिटरी सेट है जिसमें सारे मेरे पास सेट सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरा एक सेट बनाती हूँ, लेट्स सपोज ए सेट, एक मेरे पास सेट ए है और मुझे एग्जामिनर ने डिफाइन किया हुआ है कि सेट ए इज ऑल इवन नंबर्स, तो आपने जो इवन नंबर्स चूज करने होते हैं ना वो आप इस यूनिवर्सल से चूज करोगे। सो यू गोइंग टू चूज योर इवन नंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट ऑफ ओवर देयर, तो 2 4 हो गया, 6 8 एंड 10। तो यूनिवर्सल सेट से सारे सेट निकल के बनते हैं, बी एट योर सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये सारे सेट यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम योर यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इसके अलावा कौन से सेट्स आते हैं भाई, एक आपके पास आ जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स which basically have the upper and lower limits mentioned, यानी आपको अपर और लोअर लिमिट्स मेंशन की भी होती है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर कह रहा है भाई कि आपके सेट, आपका जो सेट के डिजिट्स है ना, एलिमेंट्स हैं, वो ग्रेटर देन 1 है बट लेसर देन 7 है, तो अपर लिमिट भी मेंशन है, लोअर लिमिट भी मेंशन है, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट होता है आपके पास जब एग्जामिनर आपको कहे कि आपके पास एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 7। भाई ग्रेटर देन 7 तो बहुत सारे नंबर्स हैं, एंडिंग पॉइंट क्या है, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये आपके पास फाइनाइट सेट आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया। इसी तरह अगर आपको एग्जामिनर लिख के दे दे ऑल पॉजिटिव नंबर्स या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कहाँ तक इंटीजर्स भाई, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इसमें ना अपर लिमिट्स मेंशन होती हैं ना लोअर लिमिट्स मेंशन होती हैं। ठीक है, सेट के टॉपिक में जो चीज आती है ना, एग्जामिनर ये चीजें टेस्ट नहीं करेगा कि आप इवन नंबर्स लिखो और नंबर्स लिखो, जो चीज टेस्ट करेगा ना वो हम ज्यादातर फंक्शंस के टॉपिक में पढ़ेंगे,
कि फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा डोमेन निकालना, रेंज निकालना। एग्जामिनर कहता है आप इस डोमेन को ना सेट लैंग्वेज में बताओ, ठीक है। तो ये आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको रेंजेस को सेट लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, जो कि हम अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। और वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेट्स के टॉपिक में, बाकी चीज़ इतनी ज़्यादा आपके पास टॉपिक नहीं होती इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सब सेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आई हैव, ठीक है, रिटन मेरे पास लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पीडीएफ भेज दूंगी। सो यू कैन, अगर किसी को लिटरली हर चीज चाहिए, सो यू कैन रेफर टू इट। सबसेट का जो हमारे पास साइन होता है ना, सबसेट की दो कैटेगरीज होती हैं। एक आ जाता है भाई प्रॉपर सबसेट, ठीक है, एक कैटेगरी आ जाती है प्रॉपर सबसेट की, और एक आ जाती है फाइनाइट सबसेट। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊं, तो प्रॉपर सबसेट तब होता है जब आपके पास ए के कुछ एलिमेंट्स बी में हो, ए के कुछ एलिमेंट्स बी के सेट में हो, तो वो प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सेट ए बनाती हूँ एक, जिसमें लेट्स सपोज आई हैव 2 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, और एक सेट बी बना देती हूँ। सेट बी में मेरे पास है भाई 2 4 या 2 3, इसको पूरा कर लेते हैं, 9 एंड 10। अब बी के सेट के जो एलिमेंट्स है ना, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, सारे नहीं है, तो वील कॉल इट अ सबसेट। इट इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फाइनाइट सबसेट तब होता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो। अगर ए भी ये होता और बी का सेट भी मेरे पास यही वाला सेट होता, कुछ 2 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स ए में भी हैं, बी में भी हैं, तो आई विल कॉल इट अ फाइनाइट सबसेट। फाइनाइट सबसेट का निशान कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ सी, सॉर्ट ऑफ अ सी है ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सबसेट। ये सबसेट की एक तरह से जिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ वेन डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ। वेन डायग्राम्स अगेन आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती, ठीक है। लेट्स लुक एट द वेन डायग्राम। ये जो बॉक्स होता है ना आपका, ये यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको ई बोलते हैं। ये ए है, ठीक है, गोल, दिस इज बी। अगर मुझे एग्जामिनर कह रहा है मार्क द सेट फॉर ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं जो है इसको शेड कुछ ऐसे करूंगी, ये ए का सेट आ गया, ये बी का सेट आ गया, मुझे वो एलिमेंट चाहिए तो दोनों में कॉमन है, सो दिस इज द शेडिंग पार्ट, ठीक है। ये आपके पास आ गया दोनों का ए एंड बी। इसी तरह ए यूनियन बी जो है आपके पास आ जाता है। ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स, तो ये दोनों सर्कल्स पूरे के पूरे शेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया पावर सबसेट। पावर सेट किसी ने पूछा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो बेसिक्स चीज है ना सेट की, वो मैंने आप लोगों को इसमें कवर कर दी है। अगर आप लोगों को एडिशनल चीजें आती है, सो दैट इज परफेक्ट, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करिकुलम में पढ़ते हैं, मेट्रिसेस में भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी होती हैं, बहुत होती हैं, सो नॉट ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आप अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए यू शुड कीप ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है। अगेन एग्जाम पेपर्स में ना ये आपके पास अलग से नहीं आता, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा फाइनाइट सबसेट क्या है या प्रॉपर सबसेट क्या है, ये सब चीजें नहीं पूछेगा एग्जामिनर। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेसिस पे करा रही हूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बने हुए हो, ठीक है। शेडिंग आ सकती है भाई, आपसे एग्जामिनर पूछे कि ए यू, अच्छा एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। अगर ए जो है वो मेरे पास लेट्स सपोज ये है, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा बाकी सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे ए के सर्कल को छोड़कर बाहर वाली सारी चीजें शेड कर दूंगी, ठीक है। अगर लिखा हुआ हो ए यूनियन बी, तो आप क्या करते हो भाई, आप इन दोनों सर्कल्स की चीजों को शेड कर देते हो, राइट। अगर आपको एग्जामिनर कहे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप ए यूनियन बी के अलावा बाकी चीजों को शेड करोगे। इसका आसान तरीका होता है, पहले ए यूनियन बी आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप बाकी चीजों को शेड कर दो, तो ये दोनों सर्कल शेड नहीं होंगे और बाकी सारी चीजें शेड हो जाएंगी, ओके। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सेट का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपसे कहे एग्जामिनर फाइनाइट सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो एक आपके पास यूं हो जाता है, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट, कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास मेरे ख्याल से प्रॉपर सबसेट के नीचे आता है डैश, एंड देन अगर आपसे फाइनाइट सबसेट की बात करी जाए, तो ये कुछ इस तरह होता है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसी तरह
दिस इज बी एंड दिस इज ए, सही है। आई थिंक मैंने इसको उल्टा कर दो, ये बी हो जाएगा और ये कुछ एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स हैं, सही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। अच्छा, एक इसका सवाल कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, और फिर जल्दी जल्दी से हमें जो है ना इनइक्वालिटीज पे आना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना मैंने। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जिसमें x की वैल्यू टेस्ट हो रही हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको भाई वो कह रहे हैं कि आपके लेट्स सपोज एक स्कूल है, उसमें जो है वी हैव टू सब्जेक्ट्स, टू स्टूडेंट्स, ये साइंस और कॉमर्स कर लेते हैं, ठीक है। स्कूल में आपके पास जो है साइंस के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि भाई 15 बच्चे जो हैं साइंस के हैं, पूरे टोटल 15 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग साइंस, ठीक है। और लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 18 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग कॉमर्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर आपसे वो कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने ये बता दिया आपको, फिर वो कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं विच आर स्टडीइंग नाइदर ऑफ इट, जो साइंस भी नहीं पढ़ रहे, कॉमर्स भी नहीं पढ़ रहे, प्रॉब्ली आर्ट्स या कोई और डिसिप्लिन, ठीक है, नाइदर ऑफ इट। तो अब आप इसको, आपसे वो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स निकालो भाई आप। तो अब आपने इसको वेन डायग्राम में कैसे, अगर रिप्रेजेंट करना हो या नहीं भी करना हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले यू स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एक्स। आप कहोगे कुछ ऐसे बच्चे हैं तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको एक्स बना दो। टोटल बच्चे 15 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ जो साइंस पढ़ रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी 15 माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों किया है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ओनली साइंस कितने होंगे, 15 माइनस एक्स। ओनली कॉमर्स कितने होंगे, 18 माइनस एक्स। नाइदर ऑफ इट बाहर आ जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर सकते हो, सही है। तो अगर आपसे टोटल स्टूडेंट्स भी पूछें एग्जामिनर, तो यू कैन फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जॉस्टिव बना दिया है। हम इसको ऐसा करते हैं कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है भाई द टोटल स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स आ गया है ना यहाँ पे, तो टोटल स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 50 है, या तो आपसे टोटल स्टूडेंट्स निकालने के बोल सकता है या आपसे एक्स निकालने के लिए बोल सकता है। तो लेट्स सपोज द टोटल स्टूडेंट्स इज 50, तो मैं सारी ले लूंगी यहाँ पे 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 50। तो आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स निकल आएगा आपके पास। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू दी हुई होती तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते, बट यहाँ पे एक्स था तो मैंने यहाँ पे एक चीज इंक्लूड कर ली कि टोटल बच्चे 50 हैं। तो इस तरह यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, तो जो भी आपके पास आंसर आए यू कैन फाइंड दैट। एक एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी जो है हमारे पास वो यू कैन यूज इन योर कैलकुलेशन। अच्छा, एक बार मैं जल्दी जल्दी से इसको रिपीट कर देती हूँ, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। 15 बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं टोटल, ठीक है। अब रिमेंबर, जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉमर्स भी पढ़ रहे होंगे, जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी कैलकुलेशन साइंस वाले में आएगी। 18 ऐसे जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 2 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आर्ट्स पढ़ रहे हैं प्रॉब्ली, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों सर्कल्स के बाहर। टोटल बच्चे 50 हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, या स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग बोथ कॉमर्स एंड साइंस। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिखोगे, यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं बच्चे, दोनों डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ रहे थे 15, तो 15 माइनस एक्स आर 2 स्टूडेंट जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं। 18 माइनस एक्स आर 2 स्टूडेंट जो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 2 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। आप इन सबको ऐड कर दो, 15 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 50, ठीक है। 15 क्वेश्चन में है, यस 50 क्वेश्चन में है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए। इसमें आपसे एग्जामिनर या तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए कह सकता है, या ये बता सकता है एक्स निकालने के लिए कह सकता है। अगर एक्स बताया हुआ होता तो वी कैन काउंट एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद बस एक लास्ट चीज सेट में देख लो, उसके बाद हम इनइक्वालिटीज पे आ जाएं, ताकि ये स्लाइड्स हमारी अच्छी खासी अभी रहती हैं। वी हैव टोटल लाइक प्रोबेबली 90 स्लाइड्स हैं, 10 और रहती हैं, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ना सेट में, जो मैं बता रही थी आप लोगों को, वो है भाई रेंज। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि मुझे डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है।
अब लेट्स सपोज मुझे रेंज जो है ना, मेरी इक्वेशन की अज्यूम कर रही हूँ मैं, मेरे पास रेंज है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2। मुझे ये सेट लैंग्वेज पे लिखने का कह रहा है एग्जामिनर, तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मेरे पास ये इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगी अपने स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर देन, तो मेरे पास एक अपर लिमिट आती है, एक सॉरी लोअर लिमिट आ जाती है यहाँ पे, और एक मेरे पास अपर लिमिट आ जाती है। लोअर लिमिट क्या है? 2, और उससे बड़ी वैल्यूज कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। 2 के साथ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। कहाँ तक जा रहा है? 2 से बड़ा, तो मेरी जो लो अपर लिमिट है दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगता है। तो ये सेट लैंग्वेज मेरी हो गई। अगर एग्जामिनर कहता है एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो मैं यहाँ पे 2 के साथ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नहीं है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगी। अपर लिमिट, लोअर लिमिट है ये, अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी, बिकॉज ये ग्रेटर देन के ऊपर है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगेगा। तो ये सेट लैंग्वेज आपके पास इस तरह की आ जाती है। देन यू कैन यूज दिस। इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल करा देती हूँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपसे एग्जामिनर सेट लैंग्वेज, ज्यादातर सेट का सवाल ना इसी तरह की चीजों में एग्जामिनर यूटिलाइज करता है कि बच्चों को सेट्स आता है, तो हम उनको टेस्ट करते हैं कि वेदर दे नो सेट और नॉट। अब हो सकता है भाई मेरे पास लेट्स सपोज x is greater than and equals to 1 and lesser than 3। इसको सेट लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एक आ जाती है अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, कॉमा आ जाओ बीच में। यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट। सही है, ये आपके पास आ जाती है। अब अगर आपके पास इनफाइनाइट लिमिट हो, अगर आपके पास लिमिट हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर आपके पास वैल्यू हो x इज नॉट इक्वल्स टू -3, रेंज ऐसी हो कि -3x नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज हो सकता है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप स्टार्ट करोगे लिखना माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 कर्ली ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। इक्वल्स टू होता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता। अब मैं कैसे बताऊं कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए इंक्लूडेड? n -3 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इंटरसेक्शन का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये वाली चीज एग्जाम में आती है भाई, ये सेट लैंग्वेज का काम है जो एग्जामिनर आपसे हमेशा टेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसका एक और मैं बता देती हूँ, ये सारे सेट लैंग्वेजेस आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे इसको रिएटरेट कर रही हूँ। हो सकता है एग्जामिनर आपसे कहे भाई कि योर the values of x are, let's suppose x is lesser than and equals to 1 and x is greater than and equals to 8, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये वैल्यूज देख सकते हो। अगर सिर्फ मेरे पास होता x is lesser than and equals to 1, so this is the upper limit, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये मेरी अपर लिमिट हो गई, और लोअर लिमिट क्या हो गई? इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह के कैलकुलेशंस आ जाती हैं दैट यू कैन रेफर टू इट। यार मैं जल्दी से बस रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद इनइक्वालिटीज। देख लो जल्दी जल्दी से। अब ये मेरे पास सेट लैंग्वेज होती है, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगेगा? जब मेरे पास इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन हो तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा। इनफाइनिटी के साथ हमेशा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? अपर लिमिट है या 2 इज द अपर लिमिट और द लोअर लिमिट? कह रहे हैं 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 इज द लोअर लिमिट। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया बिकॉज इक्वल्स टू है। और कहाँ पे खत्म होगा? इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग गया। दिस इज द सेट लैंग्वेज फॉर दिस रेंज। इसी तरह अगर होता है x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक खत्म, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास होता x लाइज बिटवीन 1 एंड 3, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 के साथ कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, और 3 के साथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह अगर होता 3 -3 के अलावा सारी वैल्यूज
तो आप कर दे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इंटरसेक्शन -3 से लेकर x। सही है। सो ये आप लोगों के पास भाई सेट लैंग्वेज आ जाती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाली। ठीक है। अपर लिमिट आपके पास ये वाली लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। अगेन दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। अगर मैं कह रही हूँ कोई चीज -3 से शुरू होकर -3 पे खत्म हो जाए तो इसका मतलब है -3 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक्सट्रीम्स पे रखा है। ठीक है। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, लोअर एंड अपर। जिसको भी समझ नहीं आ रही, यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देती हूँ भाई, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है जब इक्वल्स टू का साइन हो, जब इक्वल्स टू का साइन हो। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है जब सिर्फ ग्रेटर देन हो, सिर्फ लेसर देन हो। ये चीज समझ आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप लोगों ने रेंजेस वगैरह वाली चीजों से डील करना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं, इस पे थोड़ा सा हमें टाइम लगाना है। ठीक है। तो क्वेश्चंस आई कैन टेक दैम एट द एंड ऑफ द क्लास। अच्छा जी, इनइक्वालिटीज में पहली चीज हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी चीज आए, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी अगर मैं -1 का मॉड्यूलस लूं तो दैट बिकम्स 1। अगर मैं 1 का मॉड्यूलस लूं तो वो भी 1 होगा। पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये इनपुट होता है और दिस इज द आउटपुट। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इनपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर मस्ट बी 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास सवाल आ जाएगी, इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस मिला जुला के टॉपिक है पूरा। 2x आपके पास दिया हुआ है, 2x मॉड्यूलस के अंदर है और 50 है। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x? तो रिमूव मॉड्यूलस एंड ऐड प्लस एंड माइनस ऑन द अदर साइड। तो 2x मॉड्यूलस हटा दो और दूसरी साइड पे प्लस और माइनस लगा दो। एक बार सॉल्व करो प्लस के साथ, एक बार सॉल्व करो माइनस के साथ, तो यू विल हैव योर वैल्यूज ऑफ x। इससे क्या पता चल रहा है भाई? इनपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है। दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ मॉड्यूलस। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी वैरायटी आती है जब दोनों साइड पे मॉड्यूलस हो। दोनों साइड पे मॉड्यूलस हो, नंबर 1 आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स को। यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। ये नंबर 1 है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, मॉड्यूलस हट गया। नंबर 2 है, ये आसान है, यू ऐड प्लस एंड माइनस ऑन वन साइड। आपने किसी भी साइड पे प्लस एंड माइनस लगाना है, मॉड्यूलस हटा दो और दूसरी साइड पे प्लस और माइनस लगा दो। इसको एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लो, so you will have your answers right away. This is second variety of modulus के सवाल when you have modulus on both sides. ठीक है। इसको मैं पूरा एक्सटेंसिवली सॉल्व नहीं करा रही, इसके बाद आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो। थर्ड जो आपके पास जो चीज आती है भाई, वो आती है मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी अगर एग्जामिनर कहे भाई आप सॉल्व करो इसको और आंसर में बहुत सारी वैल्यूज दे दे, तो आपको याद रखना है आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन, नो वैल्यूज ऑफ x। बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए नीचे x की वैल्यूज देगा, -2 -3 दे देगा, तो लगेगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व करेंगे, बट आपने यू हैव टू बी फर्म इन योर आंसर। अंदर की चीज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बाहर का आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस। ठीक है। आंसर है नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन, नो वैल्यूज ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज नेवर नेगेटिव। अच्छा जी, और वैरायटी देख लेते हैं भाई इसकी। अच्छा, अब ये वाला सवाल देख लो। अब इसमें क्या है, मॉड्यूलस एक साइड पे है, दूसरी साइड पे मॉड्यूलस नहीं है। अब इसमें क्या करना होता है, इफ देयर इज मॉड्यूलस ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर आपके पास मॉड्यूलस दोनों साइड पे नहीं है, एक साइड पे, लेकिन वेरिएबल, वेरिएबल इज एक्स दोनों साइड पे, तो आपने क्या करना है, आपने एक बार सॉल्व तो करना है। इसको सॉल्व कर लो भाई, एक साइड पे प्लस और माइनस डाल दो। ठीक है। ब्रैकेट क्यों बनाया? बिकॉज माइनस से साइंस चेंज हो जाते हैं। आपके पास आंसर्स तो निकल आएंगे, इसके आंसर्स भी निकाल लेते हैं। चलो, 2x + 1, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो प्लस के साथ मेरा आंसर आ जाएगा 4, और एक बार मैं इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेती हूँ।
माइनस के साथ माय आंसर इज गोइंग टू बी -2। ठीक है, दो आंसर्स आ गए। अब आप दो आंसर्स राइट अवे मार्क नहीं करना। वाई? बिकॉज मॉड्यूलस एक साइड पे है, वेरिएबल दोनों साइड पे हैं, तो आपने अपने आंसर्स को प्लग बैक करना है इन पूरी इक्वेशन में, एंड यू हैव टू चेक कि वेदर आपके आंसर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को या नहीं कर रहे हैं। इन दोनों आंसर्स को इस एक्सप्रेशन में डालकर देखो और देखो कि कोई साइड नेगेटिव तो नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें डालूं तो ये हो जाएगा 2x इज 4 + 1 मॉड्यूलस और 4 + 5, तो ये भी 9 मॉड्यूलस इक्वल्स टू 9, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस आंसर वर्क्स। इसको भी डालकर देखो, इसमें ये हो जाएगा 2 - 2 + 1 मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू -2 + 5, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे +3 आ रहा है। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने चेक करना है कि आंसर जो है ना नेगेटिव ना आ रहा हो उधर। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो सिर्फ एक आंसर आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन इसमें दोनों में पॉजिटिव आ रहा है तो बोथ ऑफ द आंसर्स आर वर्किंग ओवर हियर। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस एक साइड पे, वेरिएबल दोनों साइड पे हो, तो यू विल ओनली गो अहेड विद द आंसर दैट इज सेटिस्फाइंग योर इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही हो इक्वेशन, ड्रॉप द अदर आंसर। अगर मॉड्यूलस दोनों साइड पे हो, अगर मॉड्यूलस दोनों साइड पे होगा तो आपको प्लग बैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है मॉड्यूलस से, तो बोथ ऑफ योर आंसर्स वर्क। ये इसी चीज का वेरिएंट है, दोनों साइड पे मॉड्यूलस है, तो आपने प्लग बैक नहीं करना। सिर्फ प्लग बैक तब करना है जब मॉड्यूलस एक साइड पे हो और वेरिएबल दोनों साइड पे हो। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक आ जाती है। फिर आ जाती है इनइक्वालिटीज पे। रूल्स ऑफ फ्लिपिंग द इनइक्वालिटीज। पहला रूल नंबर 1 कहता है whenever you multiply or divide both sides of an inequality with a negative number, inequality flip। आपने -2x greater than 10, इक्वेशन में क्या करते हैं हम, अगर यही इक्वेशन होती तो आप क्या करते हैं, इसको आप यहाँ पे आंसर इधर ले लेते, -5 ले लेते। इनइक्वालिटी में जब भी आप ऐसी चीज करने की कोशिश करते हो, आपने इनइक्वालिटी को फ्लिप करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2x इज ग्रेटर देन 10 है ये, -x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो वहां पे डिवाइड हो गया। जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव होता है ना, तो आप उस साइड पे शिफ्ट करते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वेशन में। इनइक्वालिटी में शिफ्ट करते वक्त इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, ग्रेटर देन नेगेटिव लेसर देन बन जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन में कोई मसला नहीं होता था, इनइक्वालिटी में फ्लिप हो जाती है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 कहता है अगर हम साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी को फ्लिप करें, इक्वेशन में अगर ऐसा लिखा होता था मैं अपनी मर्जी से यूं कर देती थी इसको, राइट। इनइक्वालिटी में अगर आप ऐसा करते हो ना, x को इधर ला रहे हो, 3 को इधर ला रहे हो, तो फ्लिप होनी चाहिए। दिस इज रूल नंबर 2। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान से करनी है। इनइक्वालिटी के सवाल कैसे आते हैं मैम, सिंपल आते हैं। सिंपल सवाल देंगे मैथ्स की तरह, आपने इनइक्वालिटी में x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आता है जो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल में मार्क्स कहाँ पे स्टूडेंट्स के कटते हैं, फ्लिपिंग में। फ्लिप नहीं की इनइक्वालिटी, आंसर गलत आएगा। ठीक है, अच्छा जी। थर्ड आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वालिटी फ्लिप होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 है, इज ग्रेटर देन 7 + x इज -2। इक्वेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, डजंट रियली मैटर, लेकिन जब आप इनइक्वालिटी में इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो इनइक्वालिटी लेसर देन हो जाएगी। बाकी चीजें सेम है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो -2 को, लेकिन इनइक्वालिटी फ्लिप करो। हो सकता है एक सवाल में 2 बार भी इनइक्वालिटी फ्लिप हो रही हो। तो ये 3 रूल्स आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझने हैं, याद करने हैं, अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी के सवाल अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी फ्लिप होती है, और ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही अगेन, यू कैन मल्टीप्लाई इट। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी कि इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और x की वैल्यूज बतानी होती हैं। एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, 2x + 5 इज ग्रेटर देन 3x - 12। दिस बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको इधर ले आओ। लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी -x, 2x - 3x, और ये हो जाएगा -17। इनइक्वालिटी फ्लिप होगी और साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो इक्वेशन में हम करते हैं वो हम यहाँ पे आसानी से नहीं कर सकते बगैर इनइक्वालिटी फ्लिप किए। सही, तो ये आपके पास आ जाता है।
देखो इसका आंसर क्या आ रहा है इक्वेशन में, अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो ये आ रहा होता, मैं इक्वेशन में माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देती हूँ। अब ऐसी चीज जब मैं करती हूँ अपनी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, बिकॉज ये माइनस जो है ना वहां जाके डिवाइड हो रहा है इनफैक्ट, तो माई इनइक्वालिटी इज गोइंग टू फ्लिप। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सिंपल क्वेश्चन फॉर द इनइक्वालिटी का एक आपके पास आ जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्वाड्रेटिक हालांकि हमारा सेकंड डे का प्रोबेबली एजेंडा में है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया ताकि इनइक्वालिटीज एक साथ कवर हो जाए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है भाई, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे एग्जामिनर इस तरह की, और आपसे इनइक्वालिटी लगा दे इसके आगे तो आप रेंज कैसे बताओगे? पहला तो आप फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज आप सबको करना आता होगा कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, राइट? तो 1 इंटू -20, तो इसके फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 10 आ जाएगा, फिर वी हैव 5 इंटू 4। तो आई एम गोइंग टू गो विद दिस सेट, फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से आती होगी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ +5x -4x -20। पहले आप फैक्टराइज कर लो। जैसे ही आपने फैक्टराइज कर लिया, यहाँ पे टेक आउट द रूट्स। एक रूट आ गया भाई -5, एक रूट आ गया 4। अब मैं इनइक्वालिटी में कैसे बताऊं? इनइक्वालिटी में आपने कैसे बताना है, यू हैव टू लुक एट द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये दोनों सवाल सेम है, इसके भी रूट सेम आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेटर देन हो ना, तो x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू एंड x इज लेसर देन द स्मॉलर वैल्यू। ये मैंने प्रोबेबली नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो लिखा है मैंने। चलो नहीं लिखा तो चलो मैं भी लिख देती हूँ उसको। क्या करना है आपने, अगर आपके पास ग्रेटर देन हो तो x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू एंड x इज लेसर देन द स्मॉल वैल्यू। ये आपके पास रेंज बन जाएगी, ग्रेटर देन द बिगर, लेसर देन द स्मॉल। अगर लेसर देन वाली इनइक्वालिटी हो तो आप क्या करोगे, x लाइज बिटवीन द स्मॉलर वैल्यू एंड द बिगर वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास लेसर देन वाली चीज हो तो x lies between the small value and the big value. This is the template that you can remember and that is going to fix all of your. ठीक है, so this is basically going to be your values for ये आपके पास रेंज आ जाती है। ठीक है, x is greater than the bigger value, the x is lesser than the smaller value and then you have this। ठीक है, yes I can repeat it। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फैक्टराइज करते हो। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। अब सवाल ये आता है कि आप यहाँ पे रेंज क्या बनाओगे। सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक अप अ रेंज ओवर हियर? अगर आपके पास ग्रेटर देन वाला साइन हो तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू एंड x इज लेसर देन द स्मॉलर वैल्यू। ये चीज x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है वो ग्रेटर देन के साथ आ जाएगी और छोटी वैल्यू लेसर देन के साथ आ जाएगी, अगर आपके पास ग्रेटर देन वाला साइन हो। अगर लेसर देन वाला साइन हो तो आप कैसे लिखोगे इसको, x lies between the smaller value and the bigger value, जो कि मैंने इस आंसर के नीचे लिखी है। तो ये एक टेम्पलेट है which you can use this to this. So obviously there are numerous options, ठीक है, जो आप लोगों को probably आते भी होंगे, so you can resort to that. बट अगर किसी को बेसिक चीज समझनी हो तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इनइक्वालिटी का देख लेते हैं। इनइक्वालिटी का भी वही वाला हिसाब है भाई, आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करो एंड ग्रेटर देन, अगर आपके पास आंसर लाइज ऑन द एक्सट्रीम्स और लेसर देन एन आंसर लाइज इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं तो आप एक बार इसको पहले से इक्वेशन कर लो। इसको आसान तरीका ये है, पहले यू राइट इट एज एन इक्वेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, एक आंसर आ जाएगा 5 और एक आंसर आ जाएगा -5, राइट? अब आप देखो ग्रेटर देन का साइन है तो x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू एंड x इज लेसर देन द स्मॉलर वैल्यू। ये भी एक तरीका है, या आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो। यानी एक बार आप सॉल्व कर लो इसको x इज ग्रेटर देन 5 के साथ सॉल्व कर लो, और एक बार आप x इज बेसिकली लेसर देन -5 के साथ सॉल्व कर लो। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिजल्ट इन सिमिलर आंसर्स। अच्छा जी, x plus 3 is lesser than 20, सेम क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, आंसर्स निकालो। हिंट क्या होगी भाई, पहले इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो और फिर आप ग्रेटर देन वाली ट्रिक लगा लो उस पर, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे इनइक्वालिटी के। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे डले हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, हम सारे नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है
ये हम देख लेते हैं बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम। ये क्या सवाल कह रहा है आपको इनइक्वालिटी बनाना सिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इट इज टेस्टिंग यू टू ड्रॉ अप एन इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी बनानी है आपने खुद, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x माइनस मिड पॉइंट इज ग्रेटर देन द वेरियंस एंड x माइनस मिड पॉइंट इज ग्रेटर देन द वेरियंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे देखो नंबर्स क्या लिखे हुए हैं। दे आर सेइंग के फॉर pumpkin cramming John will not use pumpkins that weigh less than 2 pounds। वो यूज नहीं करेगा उन pumpkins को that are weighing less than 2 pounds और weighing less greater than 10 pounds। दो नंबर्स इधर आ गए, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालो भाई इन दोनों नंबर्स का। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, 12 आ गया, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ गया। अब वेरिएंस निकालना है आपने। वेरिएंस वो स्टैटिस्टिक्स वाला वेरिएंस नहीं है, सिंपली वेरिएबिलिटी निकालनी है आपने। आप कह रहे हो मिड पॉइंट 12 है, पहले 2 था और 10 था, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपके पास मिड पॉइंट से इधर भी जो है यू आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ लेट्स सपोज 2 और नहीं सॉरी 2 मिनट। मिड पॉइंट मैंने गलत निकाला है ना, 6 यार, प्लीज बता दिया करो कि 6 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 6। सो अब मुझे वेरिएंस निकालना है। मिड पॉइंट 6 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 10 था, तो वेरिएंस कितना है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, राइट। तो ये वेरिएंस और मिड पॉइंट को यूज करके आप इधर डाल दो, x माइनस मिड पॉइंट 6 है इज ग्रेटर देन द वेरिएंस। अब ग्रेटर देन आई या लेसर देन आई मेरी इनइक्वालिटी में, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे इन दोनों चीजों से पता चलेगा। अगर मेरे आंसर्स कुछ इस तरह आए, x इज लेसर देन दिस एंड ग्रेटर देन समथिंग, तो ये कौन सा वाला सिनेरी होता है भाई, x इज ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू लेसर देन द स्मॉलर वैल्यू, ये ग्रेटर देन वाला सिनेरी होता है, ठीक है। सो माय इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 4, मिड पॉइंट वेरिएंस, so D is the answer for it, ठीक है। Zia, we have to cover up the class ना, we are already running out of time, तो मुझे ये सारी चीजें कवर करानी है, ठीक है। फिर अगर इसमें मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप लोग, ठीक है। मिड पॉइंट और वेरिएंस को यू हैव टू थिंग्स, ठीक है। यू हैव ग्रेटर देन सम वैल्यू एंड देन यू हैव लेसर देन सम वैल्यू, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट निकाला, वेरिएंस निकाला, और यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगा। ये वाला साइन कैसे मुझे पता चलेगा भाई, अगर मेरा आंसर एक्सट्रीम्स पे लाई कर रहा है, इस तरह का कुछ आंसर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेसर देन 2 ग्रेटर देन 10, तो आपके पास ग्रेटर देन आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है या ऐसा सेट है विच इज बेसिकली लाइंग इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है कि एक्स पम्पकिन्स वे लेसर देन 2 एंड ग्रेटर देन 10, इस तरह के कोई सिनारी होती तो मैं लेसर देन वाला साइन चूज करती, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास आ जाती है कि आपको इनइक्वालिटीज क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। इसकी भी सारी चीजें आई हैव रिटन इन द स्लाइड्स। ये ग्रेटर देन तब होता है जब लाइज ऑन एक्सट्रीम, लेसर देन तब होता है जब लाइज ऑन बिटवीन, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी की दैट यू हैव, दैट यू कैन रेफर टू। ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी थी आप लोगों के लिए। अगर आपके पास ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव वैल्यू हो तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेसर देन एनी नेगेटिव वैल्यू हो तो नो रियल वैल्यूज, बिकॉज जब आप लेसर देन एनी नेगेटिव वैल्यू की बात करते हो भाई, तो इसका मतलब है और नेगेटिव हो जाना। ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है ना आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए ऑल रियल वैल्यूज है। लेसर देन नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू और नीचे चली जाएगी और नेगेटिव होती जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ax plus b is greater than negative value, तो all real values, lesser than any negative value, no real values, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है भाई दिस, ठीक है। इसमें क्या इशू है किसी को इस वाले चीज में, ठीक है, प्लीज इसको मैं वापस से समझा देती हूँ। देखो द लॉजिक इज, अगर आपके पास 2x plus 1 is greater than any negative value, तो द आंसर इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्यों? क्योंकि अगर मैं -15 से कोई बड़ा नंबर लूं, तो पहले मैं लेट्स सपोज -14 लूंगी, फिर मैं -13 लूंगी, फिर -12 लूंगी, तो ये आगे बढ़कर ना पॉजिटिव हो जाएगी ये वैल्यू, इसीलिए इसका आंसर होगा हमेशा ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन अगर मैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू से लेसर वैल्यू लूंगी, तो ऑब्वियसली मैं -15 से छोटी वैल्यू -16, -17, -18, तो ये नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए इसका आंसर नो रियल वैल्यूज है, बिकॉज मॉड्यूलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इट इज पॉसिबल कि ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है। लेसर देन नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल।
ये सारी चीजें पॉइंटर्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं इफ यू आर, ठीक है, रेफर टू इट। अगर आप लोग इसको एक बार भी रेफर करोगे सो यू कैन you will be able to understand these questions. वेरिएंस जिसको समझ नहीं आ रहा, वेरिएंस इज सिंपली द डिफरेंस। मिड पॉइंट आपने निकाला और जो दोनों नंबर्स थे ना भाई, एक 2 था और एक 10, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में जस्ट बाय द वे। तो वेरिएंस इज द डिफरेंस। 6 minus 2 is 4 and 10 minus 2 is 4। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ना। so this is simply the difference that you have to that you can calculate, ठीक है। अच्छा, लेट मी सी कि और हमारे पास कितना रह गया है। दिस इज जस्ट द लास्ट स्लाइड, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा शेडिंग वाली चीज आती है इनइक्वालिटी में, यानी आपको किस तरह इनइक्वालिटी ग्राफ पे आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपके पास सॉलिड लाइन बनी हुई हो, सॉलिड लाइन का मतलब है ये वाली लाइन जो सॉलिड लाइन होती है, सॉलिड लाइन का मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू या लेसर देन और इक्वल्स टू। डॉटेड लाइन हो इस तरह की, उसका मतलब होता है ग्रेटर देन या लेसर देन, यानी इक्वल्स टू वाला साइन नहीं आता। ये पहले पॉइंटर्स याद कर लो, फिर मैं बताती हूँ आइडेंटिफाई कैसे करना है। अबव द लाइन अगर होगी, यानी अबव द लाइन इज ओनली फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। अबव द लाइन यानी लाइन के ऊपर या राइट ऑफ द लाइन। इसी तरह बिलो द लाइन या लेफ्ट ऑफ द लाइन इज फॉर लेसर देन और लेसर देन एंड इक्वल्स टू। इसको समझ लेते हैं हम लोग ग्राफ को देखकर। अब ये देखो, ये एक लाइन है 2x माइनस 4 की, ठीक है, दिस इज अ लाइन। इसको इनइक्वालिटी बना दे एग्जामिनर, y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 4। तो ये 2x माइनस 4 के ऊपर लाई कर रहा है ना, ठीक है, ये ऊपर लाई कर रहा है या राइट पे लाई कर रहा है, यू हैव टू लुक एट दिस एंगल। तो ये ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो इसके ऊपर वाला जो शेडेड रीजन है ये ग्रेटर देन को बता रहा है। इसी तरह ये वाला देख लो, ये लेसर देन इसलिए है बिकॉज लाइन के नीचे लाई कर रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लेसर देन। इसी तरह लेसर देन एंड इक्वल्स टू है, तो ये सॉलिड लाइन बना दी है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन था, डॉटेड लाइन है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सॉलिड लाइन है, ठीक है। दीज थिंग्स आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह का आ जाता है डॉटेड लाइन। और इसके एक एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों के देखती हूँ क्या आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास भाई y इक्वल्स टू एक्स है, तो y इक्वल्स टू एक्स की आप सबको पता है कि लाइन कैसे बनेगी, लाइन आपकी ऐसे बनेगी, राइट। एग्जामिनर कहते हैं मार्क y इज ग्रेटर देन x, इस ग्राफ पे y इज ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू x को मार्क करो। तो मैं कैसे मार्क करूंगी भाई, इन पॉइंटर्स को यूज करके मार्क करूंगी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब है अबव द लाइन और राइट ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, इसके ऊपर वाला एरिया मैं मार्क कर दूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई, ये चीज थी जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज y इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाऊं, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 5। एग्जामिनर कहे कि y इज लेसर देन एंड इक्वल्स टू 5 को मार्क करो ग्राफ पे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये इक्वेशन है, इस लाइन के नीचे वाला एरिया होगा। नीचे वाला एरिया क्यों होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है बिलो द लाइन और लेफ्ट ऑफ द लाइन फॉर दीज वैल्यूज एंड अबव और राइट फॉर दीज वैल्यूज, ठीक है। ये चीज बस आपके पास होती है। नो, दे डू नॉट महम, दे डू नॉट रियली आज दीज ग्राफ्स, ये कॉन्सेप्चुअल है, कभी कभार आ जाते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो, शेडिंग नहीं देंगे, वो कहेंगे आइडेंटिफाई करो कि ये वाला ग्राफ किस इनइक्वालिटी को बता रहा है। तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो डॉटेड लाइन है वो ग्रेटर देन को बताती है, सॉलिड लाइन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू को बताती है, ऊपर वाला एरिया हो शेडेड तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और नीचे वाला एरिया शेडेड हो तो लेसर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये इस वजह से काम आते हैं, आपको शेडिंग के अलग से नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली जो मुझे चीजें आसान लगती थी, ठीक है, और मुझे लगता था कि दीज आर बेसिकली इजियर अगर आप लोग अपने टेस्ट में इनको इन्वॉल्व करते हैं, बट आई एम नॉट गारंटीइंग कि भाई यही चीजें सबसे आसान है। ऑब्वियसली हर किसी के अपने तरीके
Okay, sorry. Okay, can you all hear me? ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं, मैं चैट जरा देती हूँ. Any comments that you guys have? क्या चीजें? Again, the things that I taught you, they are not exhaustive. ठीक है, ऐसा नहीं